contraction and relaxation, right? So now you could see I have given the next heading as per our synopsis of the chapter, morphology followed by histology, and then we will go through an ultrastructure of muscle, where you are going to experience that how a sarcomere, the functional unit of muscle, has been designed to perform the sliding action, Now, to begin the topic, a brief revision. Last day when we have gone through the types of muscles, where we have gone through around 20 plus points while comparing the three types. Finally, what we concluded that, as already mentioned, that there are three basic consideration to classify muscles. First is on the basis of appearance. Next is on the basis of control. And next is location. Thereafter what we did, ये 3 points तो हैं, but thereafter we have considered many minute precise concepts to classify and understand the types of muscles. Now, considering all these, we could better say that first of all, on the basis of appearance, muscles are straighted and unstraighted, right? Broadly, it is of two types. फिर खुद straighted muscles on the basis of location are of two types. That is skeletal, the type of muscle which we are going to experience today in detail, and skeletal and cardiac. So by this presentation, I just want to simply mention and make you recall कि cardiac muscles, though it is partly like straighted and partly like, but when the question is being asked that cardiac muscles is more likely, किसकी तरह ज़्यादा है, the answer will be straighted. Though it has got its own unique differences. मैंने जितनी भी differences आपको लिखवाए थे, उनमें से 5 ऐसे classical points थे जो cardiac muscles खुद exclusively exhibit करते हैं, which is rather absent in straighted and unstraighted. उस बात को मैं इस चैप्टर के आखिरी में, या इंडीड आप सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे तो उसमें हार्ट के जो मायोकार्डियम है, मायोकार्डियम की हिस्टोलॉजी की खासियत ये है कि कैसे कार्डियक मसल्स के इंटरकैलेटेड डिस्क उनको यूनिक बनाते हैं टू जस्ट परफॉर्म दैट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन इन अ रिदम, जो थ्रू आउट लाइफ मेंटेन होता है विद अ पेस, और उस पेस को ही हम कहते हैं हार्ट रेट. क्या कहते हैं? which beats with a rhythm of 70 to 75 times per minute normally for human being. So straighted muscles खुद दो तरह के होते हैं लोकेशन के बेसिस पे. अब आ जाते हैं इस पे कंट्रोल. If we consider the control mechanism, then cardiac as well as unstraighted both are involuntary, they perform their contraction and relaxation without will, whereas skeletal muscle is voluntary. But thereafter, being voluntary, definitely this muscle, skeletal straighted muscle, would be under control of nervous system. Nervous system के somatic nervous system या division के अंडर है ये. But here the condition change for cardiac and both are involuntary, but because they are not under will, they are without will, but conditionally thereafter cardiac muscle itself is under two control. One is intrinsic control and another is extrinsic. By mentioning this, I would just like to recall, now you have to refer the NCERT book class 11th chapter body fluid and circulation, जहां एक paragraph dedicated है on the regulation of cardiac activity. वहां ये बात specially mentioned है जिसको मैंने last day भी discuss किया था. The intrinsic control is by virtue of presence of some unique modified cardiac cells which rather behave like nervous tissue called nodal tissues. वहां से ये controlled है intrinsic.
और इसी को ही मैंने आपको लिखवाया था नोट्स में, दैट व्हाट मीन बाय ऑफरिंग मायोजेनिक, कैसा नेचर, whereas the intrinsic control is from the brain, और ब्रेन में भी हिंड ब्रेन का स्पेशल पोर्शन मेडुला ऑब्लोंगेटा, and finally unstated is under the control of ANS. It is under the control of autonomic nervous system with its two division, again SNS and PSNS, body के जैसे भी components होंगे. So that's the complete setup of muscular system in coordination with the nervous system. So today we will, indeed, to understand the detailed mechanism and setup of muscles, we have chosen striated muscle, which has been studied in detail with all aspects. Out of the three, nature has chosen striated muscles histologically and then anatomically designed it to give rise to what we call bundles. Last day मैंने ये बात आपके सामने रखा था, and those bundles act as organs. And definitely a system is made up of what? Assembly of organs. The whole human muscular system is finally made up of 639 bundles, organs. So today we will just take up a area from the body. Definitely, as usually, first let us experience the morphology of a muscle bundle. Throughout body, out of 639 muscles, suppose I have chosen, as per NCERT भी यही direction देता है, this is a bicep muscle. This is a bicep muscle bundle, which is anatomically located in the upper arm, hand के upper arm में मौजूद है, associated with what? Deltoid, as well as you could say as whole, it is being associated with the humerus, the single bone of the upper arm. So finally, if we take out, अगर हम उसको बाहर उस मसल बंडल को रिलीज करते हैं, morphologically a muscle bundle is characterized first of all by a belly region, है ना, जो thickened widest part है belly region. Rest the one part, because these are tendons, rest these are tendons made up of white fibrous connective, है ना, dense connective tissue responsible to attach a muscle bundle to the bone. But one end is called origin, one end is called, which is the immobile part. Immobile part, whereas the other tendinous end will be called as insertion, to be recognized as mobile part. So that's what reveals the morphology of a muscle bundle. Throughout body, कहीं भी हम एक muscle bundle, whether it is smallest stapedial muscle हो, largest gluteus maximus muscle bundle हो, whatever, पूरे 639 muscles में से आप किसी भी muscle bundle को आप externally उसके morphological diagram को experience करेंगे, it is recognized by widest belly region with two tendinous end. One is the origin जो कि immobile होगा और दूसरा mobile. तब जाके वो कॉन्ट्रैक्शन करते हुए, शॉर्टनिंग करते हुए बॉडी के किसी एरिया में टेंशन प्रोड्यूस कर सकता है. क्या प्रोड्यूस कर सकता है? दैट इज द वर्क डन परफॉर्म्ड बाय इट टू गेट द फोर्स. सो दैट्स द मॉर्फोलॉजी. बट एज सुन एज वी पीप इनटू इट्स हिस्टोलॉजी, व्हाट डज इट मीन? कि एक मसल बंडल को हम उसकी हिस्टोलॉजिकल स्टडी के लिए इस तरह से कट करते हैं. सो दिस विल बी द व्यू जहां पर उसको एज अ होल दिखाया गया है कि इस बोन एंड के साथ अगेन ये रहा टेंडनस एंड. रेस्ट अ मसल बंडल इज फर्स्ट ऑफ ऑल कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स आउटरमोस्ट लेयर. आउटरमोस्ट लेयर, दैट्स एज अ शीट ऑफ, है ना, कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड fascia, and that fascia is named as epimysium.
Now epimysium, the outermost covering, it itself actually hold and bound, वो किसको bundle up करता है, किसको bunch up करता है, it actually covers and packs the bundles of, ये जो bluish area आप देख रहे हैं, these are called fascicles. These are called fascicles. So striated muscle is characterized by bundle form, which is achieved by fascicles, or fascicles are formed due to presence of fascia. This is the statement continuity. So a muscle bundle, first of all, from its outer area is covered by a connective tissue layer called epimysium. Within, हम epimysium को unfold करेंगे तो we will find bundles of fascicles. Now you could experience, उसी में से एक fascicle को मैंने बाहर इसको खींच के यहाँ निकाला, that we recognize as fasciculus. ये plural form है, ये singular form है, fasciculus. Rather, this diagram helps to reveal that each fasciculus, out of those fascicles, each fasciculus is covered by outermost layer called perimysium. Now, what each fasciculus itself is a bundle of what? What these are? The green circles जो आपको दिख रहे हैं, these are bundles of, each fasciculus itself packed by perimysium, and which covers the bundle of muscle fiber. Muscle, what is muscle fiber? Each muscle fiber is a myocyte, muscle cell, myofiber. और रिकॉग्नाइज करें, मैंने लास्ट डे ही बताया था कि straighted muscle cells are myocytes, but they are recognized due to their elongated cylindrical structure, hence the word fiber is utilized. उनके nomenclature में fiber word, muscle fiber word हम unstraighted या cardiac के लिए नहीं बोलेंगे, it is only for straighted muscle due to its which appearance, elongated cylindrical. दिख रहा है diagram? So this is the histology, ये histological setup है. आगे का ये diagram फिर continue किया ultimately उस ultra structure को समझने के लिए. तो आज मैं बिल्कुल सिस्टमैटिकली लिखवा भी ऐसे ही दूंगा आपको, बस पहले एक बार समझ लीजिए डायग्राम से. द होल ह्यूमन मस्कुलर सिस्टम is characterized by presence of 639 muscle bundles, organs, where each muscle bundle is an organ. If it is so, then morphologically it has got a widest part belly with two terminal ends, tendinous ends. One is origin जो immobile हो जाएगा और दूसरा insertion mobile part. एक ऐसे मसल बंडल को जैसे हम टीयर ऑफ करके स्टडी करने जाते हैं तो फाइनली वी गो थ्रू अ ट्रांसवर्स क्रॉस सेक्शन. तो ये कुछ इस तरह से अपीयर होगा, लेयर आफ्टर लेयर अगेन, एंड दोज लेयर्स आर फाइन कनेक्टिव टिश्यू लेयर्स, है ना, रिस्पेक्टिवली फ्रॉम आउटर टू इनर. फिलहाल हमें दो लेयर्स के नाम पता चले हैं विच आर रिस्पेक्टिव फैस्चिया. द आउटर मोस्ट लेयर एपिमाइसियम covers and hold the bundle of fascicles, where each fasciculus itself is covered by outermost layer perimysium. Within perimysium, which itself covers and hold bundles of muscle fiber. This is a muscle cell, myocyte, elongated, cylindrical with the tapered ends, है ना. syncytium कैसा है? मल्टी न्यूक्लियस कंडीशन, क्योंकि एक एक मोनोब्लास्ट, मायोब्लास्ट जो मसल सेल्स के जुड़ने से वो बना है. एक न्यूक्लियस जो है बहुत सारे न्यूक्लियस में नहीं डिवाइड हुआ है ना, एक एक सिंगल सेल्स जुड़ के ये इलोंगेटेड इसने स्ट्रक्चर अचीव किया है, हेंस इट इज कॉल्ड सिंसीशियम. एनिमल किंगडम में ऐसी भी मल्टी न्यूक्लियड कंडीशन को क्या कहते हैं? सिंसीशियम कंडीशन. ओके, सो दिस इज अ मसल फाइबर. फाइनली खुद एक मसल फाइबर क्या है आप देख सकते हैं. इफ इट इज द आउटर मोस्ट लेयर जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, यानी सार्कोलेमा, सार्को अंदर साइटोप्लाज्म सार्कोप्लाज्म होगा, एंड रेस्ट अदर चीज मल्टी न्यूक्लियड कंडीशन माइटोकॉन्ड्रिया होगा, वो सब मैं बताऊंगा जाके. रेस्ट ऑल सारे ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपोजिशन जो एक मसल को अपनी बायोकेमिस्ट्री, अपनी फिजियोलॉजिकल एक्शन के लिए चाहिए, वो सब कुछ अरेंजमेंट होगा. लेकिन मेन फंक्शनल अरेंजमेंट क्या है? ईच मसल सेल मायोफाइबर कंटेन्स बंडल्स ऑफ, फिर आप देख सकते हैं गुच्छे बने हुए हैं, मतलब ये रहा ऐसे, you could see
एक मसल सेल के अंदर भी, सार्कोलेमा के अंदर जो भी साइटोप्लाज्म सार्कोप्लाज्म है, लेकिन मोस्ट ऑफ द एरिया 90% एरिया इज ऑक्युपाइड बाय सम बंडल्स. What are these bundles? What are these bundles? Now they are contractile filamentous structures. Contractile filaments. अब वो filaments कैसे बने हैं सब दिखेगा आगे चल के. Called myofibrils. Called, ये सीक्वेंस पहले याद होना चाहिए आपको. I have started with what? First of all, अब देखिए यहां लेबलिंग करते, ठीक है, यहां तक सबको आया समझ में? एवरीवन ध्यान से देखिए. फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज मसल, यानी ऑब्लिक एन ऑर्गन. हिस्टोलॉजी तो एक्चुअली यहां से चालू होता है ये, क्योंकि एन ऑर्गन इज मेड अप ऑफ टिश्यूज. हाउ अ मसल बंडल इज एन बीइंग एन ऑर्गन? द क्वेश्चन अराइज. ठीक है, एक तो मसल सेल उसमें है, ग्रुप ऑफ सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स टुगेदर इन स्ट्रक्चर, फंक्शन, ओरिजिन, हेंस इट्स अ मस्कुलर टिश्यू. लेकिन मस्कुलर टिश्यू के अलावा डेफिनेटली बीइंग अ मसल बंडल ब्लड वेसल सप्लाई भी मौजूद होगा, अंदर पेनिट्रेट करेगा, विच विल कंटिन्यू, है ना, अप टिल द सेलुलर लेवल. सेल्स के साथ चलते हैं ब्लड वेसल्स. सबको आ रहा है समझ में? एवरीवन, फॉर दैट एक्सचेंज विद द कैपिलरीज. तो खुद ब्लड वेसल्स जो है एपिथेलियम टिश्यू के फाइनली बने होते हैं ब्लड कैपिलरीज. तो मस्कुलर टिश्यू के अलावा एपिथेलियम है. फिर अभी अभी मैंने जो नाम लिया एपीमाइसियम, पेरीमाइसियम तक, व्हाट दीज आर? कनेक्टिव टिश्यू, यानी थर्ड टिश्यू टाइप. और एट लास्ट बीइंग मसल्स इट नीड्स व्हाट? कंट्रोल. इट नीड्स व्हाट? और कंट्रोल के लिए एक मसल बंडल को कौन पेनिट्रेट करेगा? दीज आर दोज नर्व फाइबर्स व्हिच आर पेनिट्रेटिंग. So today we have justified, yes, each muscle bundle is an organ made up of more than one tissue. लेकिन अभी मुझे बाकी चीजों से मतलब नहीं है, मुझे तो मेन मतलब है we want to recognize how a muscle has been designed histologically till its ultrastructure level to perform that unique action of sliding, to generate force in two form, contraction and relaxation. उसके लिए वो कैसे स्लाइडिंग स्ट्रक्चर बना है, कैसे वो फंडामेंटल स्ट्रक्चर्स, फंक्शनल यूनिट जिन्हें हम सार्कोमियर कहते हैं, जिसके कंपोनेंट्स एक्टिन और मायोसिन एक दूसरे के पैरेलल अरे में अरेंज होकर ना केवल मसल्स को अपीयरेंस वाइज स्ट्रेटेड बनाते हैं, बट ट्रूली मेक इट फंक्शनल टू परफॉर्म दैट एबिलिटी टू जनरेट फोर्स फॉर मूवमेंट. क्योंकि चैप्टर का सेंटर कोर कंसेप्ट यही था. व्हाट इज मूवमेंट? मूवमेंट नीड्स थ्री थिंग्स: फोर्स, डायरेक्शन, कंट्रोल. एंड द चैप्टर मेनली व्हाट वी आर डीलिंग, द एस्पेक्ट, उस चैप्टर के जिस पहलू को हम अभी पढ़ रहे हैं उसमें हमें उसी हिस्से को देखना है कि मूवमेंट के लिए फोर्स कैसे बॉडी में इनहेरेंटली अंदर से जनरेट होता है. दैट्स हाउ वी स्टार्टेड द चैप्टर, कि एवरी लिविंग बीइंग हैज द एबिलिटी टू डेवलप दैट इनहेरेंट फोर्स बाय इंटरनल मेटाबॉलिज्म. और वो एक एक मेटाबॉलिज्म परफॉर्म करते हैं दीज मिनिएचर इंजन्स, जिन्हें हम कहते हैं मायोफाइबर. क्या कहते हैं? एक एक मसल सेल एक एक मिनिएचर इंजन है, जिसने अपने अंदर पिस्टन की तरह, जैसे पिस्टन गाड़ी के अंदर मूव करता है सिलेंडर के अंदर बाय बर्निंग द फ्यूल, बाय बर्निंग द, ठीक वैसे हमारे शरीर के अंदर ऐसे पिस्टन लाइक अरेंजमेंट्स हैं, सिलेंड्रिकल पिस्टन, जो एक दूसरे के ऊपर नीचे ऐसे करके घिसते हैं, स्लाइड पास करते हैं. एंड ड्यूरिंग दैट द बायोलॉजिकल एनर्जी करेंसी एटीपी हाइड्रोलाइज करता है टू जनरेट दैट रिक्वायर्ड एनर्जी. That's the biochemistry of muscular contraction, है ना, proposed and made understood by Huxley and Huxley brothers. तो चैप्टर के आखिरी में इस बात को जस्ट कंक्लूड करने के लिए पहले हमें मसल्स का पूरा डिटेल्ड स्ट्रक्चर क्लियर रहना चाहिए. एवरीवन ओके? सो ये सेटअप था, ईच मसल बीइंग एन ऑर्गन, ये साबित हुआ. और उसके अंदर मौजूद ये रहे फेसिकल्स, जिसमें से मैंने एक खींच के निकाला, खुद एक फेसिकल बंडल ऑफ मायोफाइबर्स हैं, लेकिन उसको ही मैंने फिर कंटिन्यू किया. मैं फेसिकली लिख रहा हूं, यहां पर फेसिकुलस लिखना चाहिए बट मैं फेसिकल लिखा है. मसल मेड अप ऑफ नंबर ऑफ फेसिकल्स वेयर
epimysium. The same concept continues. And this is finally what? Fascicle contains what? Myofiber, muscle cell. लेकिन मसल सेल के आउटर मोस्ट लेयर को तो हम क्या कहेंगे? सार्कोलेमा. ठीक है. बट पॉइंट टू बी नोटेड, मैं रेड कलर का इस्तेमाल कर रहा हूं. द होल मायोफाइबर इज एडिशनली कवर्ड बाय द इनर मोस्ट. एक क्योंकि फिर इनको जोड़ेगा कौन? ये जो बंडल बनता है इनमें तो सेल जंक्शंस नहीं होते, तो ये जो आपस में पैक होते हैं तब इनके ऊपर जो फाइनल पैकिंग होती है. लेकिन ये आपस में कैसे एक दूसरे से कनेक्ट होंगे? दे नीड सम कनेक्शन, अटैचमेंट. एंड सिंस स्टेटेड मसल्स लैक सेल जंक्शन, उनमें सेल जंक्शंस नहीं होते हैं, राइट? बट स्टिल दे आर कनेक्टेड बिकॉज ईच myofiber has got a final layer, outermost layer of endomysium. कौन सा layer? So that I will continue over here. है ना? That layer above sarcolemma is called endomysium. अब ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये वन टाइम टॉपिक है, इसमें दोबारा कोई रिवीजन नहीं, कुछ नहीं. एक दिन समझ लेना है कि हाँ ऐसा सेटअप है. जो कंसेप्ट्स है जिनको एक बिट ऑफ रिवीजन चाहिए आफ्टर सम टाइम, वो आगे चल के है. स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी क्या है, वो जो साइक्लिक मूवमेंट है जिसमें क्रॉस ब्रिज बनता है और टूटता है, उसको रिवीजन चाहिए इस चैप्टर में. हर चैप्टर का एक खास हिस्से को बना लीजिए कि टाइमली खुद आप अपने इंटेलिजेंस से कि जब भी रिवाइज करना पड़े बस इस हिस्से को रिवाइज करना पड़ सकता है. बाकी पूरा चैप्टर थोड़ी हमेशा रिवाइज होता है. दैट यू कुड मैनेज योर टाइम. मेरी बात आ रही है सबको समझ में? किसी भी चैप्टर में एक कुछ खास कंसेप्ट से रिवाइज होते हैं और उसको ही रिकॉल करके समझने के लिए बाकी सब बातें याद होनी चाहिए. अब आप डे 1 से फिर से ऐसा रोज पढ़ोगे तो इट्स दी टाइम किलिंग प्रोसेस. सबको मेरी बात आ रही समझ में? इसलिए ध्यान से आज समझ लीजिए, सुन लीजिए कैसे क्या है. वी आर डिस्कसिंग द 3 कंपोनेंट्स को पैरेलली. वी स्टार्टेड विद मॉर्फोलॉजी, वी आर स्टिल डीलिंग विद द हिस्टोलॉजिकल सेटअप. फिर एक इंडिविजुअल सेल और उसके अंदर वो माइक्रोफिलामेंट्स कैसे अरेंज है, उसी को ही कहते हैं अल्ट्रा स्ट्रक्चर. फिर लास्ट में हम देखेंगे साइटोलॉजी, एक पूरा मसल सेल अल्टीमेटली अंदर कैसे डिजाइंड है, तब जाके उसके सारे कंपोनेंट, उसमें जो नाम आएंगे, मोटर यूनिट, मोटर एंड प्लेट, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ट्रायड सिस्टम, मायोग्लोबिन, ये सब कुछ मौजूद है इसके अंदर. इन्हीं पे तो क्वेश्चन बनेगा. सबको आ रही मेरी बात समझ? पहले से डिजाइन कर लीजिए कि क्वेश्चंस क्या बनेंगे और उसके लिए हम कैसे पढ़ रहे हैं फिर. ओके, नाउ यू कुड सी, मैं इसका एक छोटा सा सिलिंड्रिकल हिस्सा ऐसा कट करता हूं, पूरे मसल फाइबर का एक छोटा सा हिस्सा. एंड फाइनली इसकी बात इसी डायग्राम में करें तो बीइंग अ मायोफाइबर डेफिनेटली इट इज अ स्ट्रेटेड मसल. अपीयरेंस वाइज स्ट्रेशंस दिख रहे हैं, अल्टरनेट डार्क एंड लाइट स्ट्रेशंस विद सिंसीशियम कंडीशन. बस यहां इतना ही दिख रहा है. Rest, the outermost layer is actually endomysium followed by sarcolemma, जिसके अंदर यहां अंदर होगा क्या? सार्कोप्लाज्म. क्या होगा? है साइटोप्लाज्म ही. क्यों इसको नाम दे दिया? क्योंकि इस सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर जिस तरह के सेल ऑर्गेनेल्स, जिस तरह से कंपोजिशन, साइटोस्केलेटन, साइटोलॉजी पढ़ी रहे हो, वही एक्टिन, मायोसिन, साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर्स जिस तरह से अरेंज है, ये किसी बॉडी के दूसरे सेल में ऐसा अरेंजमेंट, इस पिकुलियर, इसकी अपनी भी तो एक कंपोजिशन होगी जो आपको बॉडी के किसी और सेल में शायद ना मिले, क्योंकि किसी और सेल को ऐसा काम करना ही नहीं है जो ये करेगा. सबको आ रहा? ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी आर यूकैरियोटिक, क्योंकि उनमें ऐसा ऐसा होना चाहिए, बिकॉज दे आर सेल्स ऑफ एनिमल बॉडी. दिस इज सिमिलैरिटी. बट विद इन द ह्यूमन बॉडी, सपोज इन 5 नंबर वाइज तो ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं, लेकिन 221 तरह के सेल्स हैं. कितने तरह के सेल्स हैं टोटल? 221 सेल टाइप्स. अब बोले सर ये ऐसे कैसे हम गिन सकते हैं? अभी अभी कुछ समय पहले आपने एपिथेलियम टिश्यू 18 तरह के पढ़े, और हर तरह के टिश्यू में आपने वही देखा, वही एपिथेलियम सेल, कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर और शेप वाइज और फाइनली फंक्शनली वाइज उसमें चेंजेस. तो 221 में से 18 तरह के तो एपिथेलियम ही पढ़ लिया आपने.
6 तरह के आपने कनेक्टिव टिश्यू सेल्स पढ़े, यस और नो? ऐसे करके आप बॉडी में गिनते जाइए। न्यूरॉन्स न्यूरॉन्स है, लेकिन न्यूरॉन्स खुद क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंगली 3 4 5 टाइप के होते हैं। तो दिस हाउ यू ऐड, ऐसे करके बॉडी में सेल्स कितने हैं? 221 सेल टाइप्स इन ह्यूमन बॉडी। लेकिन सारे सेल्स के अंदर कॉमनली माइटोकॉन्ड्रिया होगा, सब में फलाना ढिमका होगा, मतलब दिस इज द रूल। लेकिन कौन सा सेल है जिसने सब कुछ त्याग दिया? आरबीसी। नो मोर डिफाइनिंग एंड फॉलोइंग दी सेल थ्योरी, एक्सेप्शन, रादर एक्सेप्शन हम बोल रहे हैं, बट इट डू हैव सम फिजियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस। उसको कुछ ऐसा काम करना है, उस स्पेशलाइजेशन को गेन करने के लिए उसने अपने आप को ट्रांजिट कर दिया, ट्रांसफॉर्म कर दिया। आ रहा है समझ में? तो आज आप जिस सिस्टम को पढ़ रहे हो, है ना, फ्रॉम सेल टू ऑर्गन पढ़ रहे हैं हम लोग, सेल टू, लेकिन मैं फिलहाल आपको क्लास में कैसे पढ़ा रहा हूं? ऑर्गन टू सेल तक पहुंचेंगे, ऑर्गन टू, और डेफिनेटली फिर मसल फाइबर की, भले में साइटोप्लाज्म है, लेकिन सार्कोप्लाज्म इसलिए नाम दिया क्योंकि इसकी अपनी एक यूनिक कंपोजिशन है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होगा, लेकिन हर किस पिगमेंट बहुत सारे सेल्स में है, लेकिन मायोग्लोबिन जैसा पिगमेंट बॉडी में किसी और सेल के पास नहीं है। मसल्स के पास ही होते हैं। मसल खुद 3 तरह के हैं, उनमें स्ट्रेटेड मसल्स के पास होते हैं, और जिनके पास होते हैं वही होते हैं रेड मसल फाइबर। सबको लॉजिक आ रहा है समझ में पढ़ने का? एवरीवन बिल्कुल क्लियरली? तो फाइनली एक मसल सेल मायोफाइबर के हिस्से को हमने एलॉबरेट किया, और ठीक है, आउटर मोस्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन सार्कोलेमा एनक्लोजिंग द फ्लूइड cytoplasm called sarcoplasm, moreover covered by outermost connective tissue layer, fine thin layer, है ना, to get attached while they generate fascicles, that is endomysium. Now the question is, सार्कोप्लाज्म में बहुत कुछ मौजूद है, अलग से ही मैं पूरा लिस्ट लिखूंगा, लेकिन सबसे कैरेक्टरिस्टिक चीज जो उसको जो है एंटिसिपेट करता है, उसके फीचर्स को एलॉबरेट करता है, एक्सप्लोर करने में हेल्प करता है, दोज फाइन यू कुड सी दीज बंडल्स, ट्यूबुलर लाइक, रॉड लाइक, दीज आर मायोफाइब्रल्स। अब आप देखिए, यहां से मैंने इनमें से कुछ बंच निकाल के इधर ऊपर रख दिया, ठीक है ना? जस्ट लेट अस मूव ओवर हियर। सार्कोप्लाज्म में से हमने मायोफाइब्रल्स निकाले कुछ। Now these myofibrils appears with some these now striations, again striations, ये पट्टियां दिख रही हैं, ठीक है ना? These are myofibrils. बट मैंने जिस तरह से इस बंच को उठाया है, टू 250 to 500 का एक बंच बनता है, मतलब ये एक मायोफाइब्रिल, ये यहां 3 ही दिखाएं, लेकिन 250 टू, इसी में से 250 से 500 मायोफाइब्रिल के उस बंच को कहते हैं। नाउ दिस इज द क्वेश्चन, कॉलिकुलर्स कॉलम क्या कहते हैं? विदिन अ मसल सेल, विदिन अ मसल सेल, ये रहा एक मायोफाइब्रिल, ठीक है? वो खुद मायोफाइब्रिल कैसा होता है देखेंगे अभी। क्यों उसमें स्ट्रेशंस आते हैं? वो स्ट्रेशंस किसके वजह से आते हैं? और ऑल ओवर ये अंदर से जो अरेंजमेंट है, वो फाइनली एक सेल को बाहर से कैसा अपीयरेंस देता है? स्ट्रिप्ड, स्ट्रेशंस, धारियों के साथ, ब्लैक एंड व्हाइट, डार्क एंड लाइट, जैसा आप कह लीजिए। तो वो तो समझना ही है, बट नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन? पहले यहां तक सबको आ गया समझ में? नाउ बंच ऑफ मायोफाइब्रिल्स अराउंड मिनिमम 250, मैक्सिमम 5, एक नॉर्मल रेंज है ये ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। हर चीज का एक ही नियम है, एवरीथिंग नेचर हैज प्लान्ड विद एन ऑप्टिमम कंडीशन। उससे ज्यादा हो जाए तो वो भी थोड़ा सा नुकसानदायक हो सकता है, मे बी, या कोई चीज एनहांस होगा उस व्यक्ति में, और कोई चीज जो है मिनिमम से भी कम हो तो वो डिसऑर्डर बन जाएगा। So what is colliculus column? Colliculus column are bunch of myofibrils between 250 to 500. तो इस पे मैं इतना स्ट्रेस क्यों दे रहा हूं? क्योंकि colliculus column का जो थिकनेस है, सही बात है, 250 होंगे तो कम थिकनेस होगा,
बढ़ता जाएगा तो थिकनेस बढ़ेगा, और ऐसे करके मायोफाइब्रिल्स का नंबर भी बढ़ेगा। यस और नो? और जितना मायोफाइब्रिल बढ़ेगा, मसल फाइबर सेल भी उतना ज्यादा थिकेंड और स्ट्रेंथ, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी एक्टिविटी ऑफ मसल। जिसको मैंने ऐसा लिखा है, एक्चुअली आई सिंपली मीन टू रेफर, जिसको हम डे टू डे लैंग्वेज में कहते हैं स्ट्रेंथ ऑब्लिक स्टेमिना। स्ट्रेंथ ऑब्लिक स्टेमिना। एक ही एज ग्रुप के दो व्यक्तियों को आप एक साथ खड़ा कर दीजिए, ठीक है ना, एंड वंस बॉडी इज टोन अप, वंस बॉडी इज टोन अप, एक का शरीर कैसा है, टोन अप है। टोनिसिटी मतलब मस्कुलेचर डेवलप्ड है, शेप में है, आ रहा है समझ में, दिख रहा है, मतलब हष्ट पुष्ट, आ रहा है सबको समझ में। और उसी उम्र के एक दूसरे व्यक्ति को, जो हेल्थ मिनिस्टर है, वो दिख ही रहा अलग से बिल्कुल, मतलब ये रहा उसका हाथ। सबको मेरी बात आ रही है समझ में, ठीक है ना, ये रही उसकी थाइज। कुछ आ रहा है समझ में, मतलब ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो डेफिनेटली वो जो बॉडी का वो मस्कुलेचर वो एरिया है ना, उसका जो, जिसको हम कहते हैं ना गर्थ, डायमीटर है, वो अंदर मौजूद मसल बंडल्स की वजह से। लेकिन मसल बंडल खुद क्या है, वीक। जो बेली रीजन है वो डेवलप्ड नहीं है, क्यों? क्योंकि वो कमजोर है। क्यों कमजोर है? कम टू दी कंसेप्ट। ईच मसल बंडल हैविंग व्हाट, फेसिकल्स, नंबर ऑफ फेसिकल्स कम होंगे। आ रहा है सबको समझ में? विद इन द फेसिकल नंबर ऑफ फाइबर्स कम होंगे, मायोफाइबर, और विद इन अ मायोफाइबर, विद इन अ मायोफाइबर क्या कम होगा, एंड नंबर ऑफ मायोफाइब्रल्स इन अ बंच इज इक्वल टू, एंड कॉलिकुलर कॉलम जितना थिक होगा, मतलब उसको बंच बनाने वाले मायोफाइब्रल्स ज्यादा से ज्यादा होगा, उतना उस व्यक्ति में एक्टिविटी ऑफ मसल यानी स्टेमिना ज्यादा होगा। फिजिक्स की भाषा में ऐसे कहें कि मान के चलिए थर्ड फ्लोर से नीचे एक पेन गिर जाता है ना, अब इसको उठाने के लिए एक पतले से जो स्ट्रिंग आते हैं, थ्रेड के रील आते हैं, उसी से नीचे हम फेंकेंगे, उस बांध के वो स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ वो ले आएगा उसको। अरे यस और नो? ऐसा थोड़ी कि ये मोटा रस्सा लाओ फेंका और अब उठा रहे। इमेजिन करो, जबकि दोनों ही सेम चीज है, कंपोजिशन। सबको आ रहा है लॉजिक समझ में कि लोड कितना है? लास्ट डे व्हेन वी वेर ऑन दी स्केलेटन सिस्टम, लास्ट वीक मैं बायोमैकेनिक्स पढ़ा रहा था कि लोड कितना पड़ रहा है, उसके लिए फोर्स यानी एफर्ट कितना, 7 गुना, 1 गुना बराबर, दैट्स डिफाइंस एंड डिसाइड्स द लिवरेज मैकेनिज्म। व्हाट मैकेनिज्म? लेकिन उसको सपोर्ट कौन कर रहा है? अल्टीमेटली फोर्स, और फोर्स स्ट्रेंथ, फोर्स इज इक्वल टू स्ट्रेंथ, और स्ट्रेंथ से ही व्यक्ति के एक स्टेमिना। दो एक ही उम्र के हैं, एक व्यक्ति जो है 10 बार ऊपर नीचे होके आ गया, ठीक है, बट ही इज नॉट एग्जॉस्टिंग, या उसने सरेंडर नहीं किया। जबकि उसी उम्र का दूसरे व्यक्ति से 2 बार बोला कि ये नीचे रख के लिया, और सांस भी फूल रहा है, मतलब बॉडी के जो वाइटल्स और पैरामीटर्स है, ब्रीदिंग रेट, लंग्स की कैपेसिटी, मसल्स का स्ट्रेंथनिंग, सब जो है डिस्टर्ब हो गया, और ही सरेंडर्स कि नहीं नहीं अब मैं आधे घंटे बाद ही जाके काम करूंगा, 2 बार ऊपर नीचे हो गया, जबकि एज एक ही है। सबको मेरी बात आ रही है समझ में? तो फाइनली द क्वेश्चन इज जो आया हुआ है, collicular column is directly proportional to the activity of muscle, and activity of muscle is what? To generate force, strength, tension, और वही एक व्यक्ति का स्टेमिना डिसाइड करता है। सबको ये सेटअप आया समझ में अच्छे से पहले यहां तक? एवरीवन, नाउ लेट अस एक्सपीरियंस अ पोर्शन ऑफ मायोफाइब्रिल। मैंने यहां से कट लगा के इस तरह से टुकड़ा, और फिर जो हमारे सामने अपीयरेंस आ रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल throughout the length of myofibril, throughout the length of a myofibril, you could see the peculiar arrangement. First of all, fine protein membrane, fine throughout the length, in a juxtaposition distance, थोड़े थोड़े डिस्टेंस के बाद, एक फिजिकल डिस्टेंस के बाद जो है, डॉबीज लाइन कहते हैं, जिसरशिप्स मेम्ब्रेन इसे कहते हैं, या क्रॉस मेम्ब्रेन भी कहते हैं, ऐसा मौजूद है। और फिर उनके बीच मौजूद है 2 तरह के फिलामेंट्स। एक्सक्यूज मी, यहां से लेबलिंग नहीं करेंगे।
जो थिक फिलामेंट है वो है मायोसिन, और जो थिन फिलामेंट है वो है एक्टिन. So each myofibril appears to be having striations, alternate dark and light band patterns due to the peculiar arrangement of two types of protein filamentous structures. Two types of in a parallel array to each other. एक दूसरे के पैरेलल एरे में आगे पीछे करके पैरेलली इस तरह से अरेंज है विद अ डिसकंटिन्यूअस फैशन. विद अ, देखेंगे उस डिसकंटिन्यूटी को थोड़ी देर बाद. शब्दों को गौर करो, आप क्या कह रहे हैं. व्हाट इज मायोफाइब्रिल? ईच मायोफाइब्रिल इट्स अ बंच ऑफ टू टाइप्स ऑफ मायोफिलामेंट्स. मसल के प्रोटीन कॉन्ट्रैक्टाइल फिलामेंट्स, प्रोटीन से बने हुए, मायोसिन एंड थिन एंड थिक फिलामेंट्स. थिन एंड one is thin, another is thick, hence they have been popularly called thick and thin filaments. तो उनके अरेंजमेंट के वजह से मायोफाइब्रिल बनता है. बट वो जिस तरह से अरेंज होते हैं वही मायोफाइब्रिल को क्या इंपार्ट करते हैं? इट इंपार्ट्स अ peculiar pattern of arrangement characterized by some alternate striations of dark and light. तो वो पिकुलर अरेंजमेंट जो है एक खास डिस्टेंस पे और बेहतर से समझा सकता है. दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड सार्कोमियर. दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड between two juxtaposition z line. What is sarcomere? It's a simple functional physical distance between two juxtaposition intermittent z lines. What is z line? Protein membrane, fine protein membrane. अंदर पूरा ऐसा मौजूद होता है थोड़े थोड़े दूर पे. Which holds the actin filament, जो किसको पकड़ के बनाए रखता है? एक्टिन फिलामेंट. और वो मेम्ब्रेन सीधा नहीं होता है, वो एक्चुअली ऐसा जिगजैग. ये तो मैंने स्ट्रेट बनाए रखने के लिए ऐसे डॉटेड लाइन से बीच में, ऐसा कोई अंदर रंगोली की तरह डिजाइन नहीं होता. मेरी बात आ रही है समझ में? ये तो क्लासरूम टीचिंग में बनता है ऐसा डायग्राम्स. मेरी बात आ रही है सबको समझ में? ये जो भी बन रहा है दिस इज एन आर्बिट्री प्रेजेंटेशन. ये था ओरिजिनल जो एक्चुअल है होता है ऐसा. लेकिन यहां से जो मैं समझा रहा हूं ना, इट्स एन आर्बिट्री प्रेजेंटेशन. समझ लेना पड़ेगा कि ऐसा अरेंजमेंट है अंदर. एवरीवन, होता वो जेड लाइन कैसा है? जिगजैग मेम्ब्रेन होता है, प्रोटीन है ना, डेस्मिन प्रोटीन. किसका बना होता है? ये सब मैं थ्योरी में सिस्टमैटिकली पॉइंट बना के लिखवा दूंगा. लेकिन पहले आपको लाइक अ स्टोरी पूरा याद होना चाहिए, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग टिल एंड. एवरीवन, आज समझ लो हम एक बायोलॉजिकल स्टोरी पढ़ रहे हैं. डो नॉट टेक इट एज साइंस. साइंस तो अभी थोड़ी देर बाद चालू होगा. ये जो कहानी सुनाई है, अब ये कहानी रोज हमारे डे टू डे लाइफ में कैसे शरीर में है ना काम कर रहा है, अननोइंगली, हमें पता भी नहीं, एहसास भी नहीं है, बट वो काम कर रहा है. हेंस वी आर एग्जिबिटिंग डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वैल्यूएबल एंड बायोलॉजिकली सिग्निफिकेंट मूवमेंट्स, जिससे हम अपने डे टू डे लाइफ के सारे एक्टिविटीज को परस्यू कर रहे हैं. एवरीवन क्लियर? बिल्कुल. तो फिर से गौर करिए, फिर से ध्यान से सुनिएगा. राइट फ्रॉम द बिगिनिंग जो हमने देखा मॉर्फोलॉजी, वेयर वी हैव एक्सपीरियंस्ड अ मसल बीइंग एन ऑर्गन मेड अप ऑफ व्हाट? ग्रुप ऑफ टिश्यूज, ग्रुप ऑफ, but among them one tissue is the fascicles, bundle form, which has arisen due to a packing by perimysium, fascia. fascia खुद तीन तरह से, तीन अलग अलग कैस्केड लेवल पे काम कर रहे हैं. the outermost epimysium, the middle perimysium, and individually covering each and every muscle fiber. that is endo, उसको हटाएं, सार्कोलेमा को हटाएं, the whole space, अंदर जो पूरा स्पेस है, इट इज ऑक्युपाइड बाय अ लिक्विड सार्कोप्लाज्म. लेकिन वो जगह कुछ समय बाद ही जो है फिलअप हो जाता है, ऑक्युपाइड हो जाता है बाय अ पिकुलियर बंच लाइक सिलिंड्रिकल अरेंजमेंट. दो सिलिंड्रिकल अरेंजमेंट्स आर कॉल्ड मायो, है ना, द स्ट्रक्चरल यूनिट. कैसा यूनिट है ये? मायोफाइब्रिल्स आर स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ मसल फाइबर. देन व्हाट इज द फंक्शनल यूनिट? पूरे कोर्स में कुछ चैप्टर्स, कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं, वन टाइम टॉपिक्स है, एक बार पढ़ के उसी दिन याद हो जाना चाहिए और वैसे ही अब पूरा याद रहना चाहिए. तो दिस इज द फंक्शनल यूनिट एंड दीज आर द स्ट्रक्चरल यूनिट. सही बात है. क्यों? क्योंकि ईच मायोफाइब्रिल इटसेल्फ हैज बीन डिफाइंड एज एन असेंबली इन लाइक अ बंच, cylindrical bunch of what? Two types of myofilaments, two types of thick filament and myosin and actin. Now, okay,
असेंबल होते हैं, बट देयर असेंबली इज नॉट सिंपली असेंबल्ड कि थ्रू आउट द लेंथ एक जैसे यूनिफॉर्म अरेंज्ड है. नो, दे आर अरेंज पैरेलल टू ईच अदर बट विथ एन एरे, यानी आगे पीछे. और उनका वो आगे पीछे के कारण, ये देखिए ना, थोड़ी देर के लिए ऐसा कंसिडर करिए जैसे ये रहा डायग्राम, ये बीचों बीच है, इससे थोड़ा आगे ये है, ये थोड़ा इस तरफ है. पैरेलल एरे का ये मतलब होता है. और ऐसे होल्ड रहने के लिए फिर उनको मिलते हैं दो तरह के प्रोटीन लाइनिंग्स, मेम्ब्रेन्स. एक्टिन को कौन पकड़ बनाए रखता है, हेल्ड करके रखता है? जेड लाइन, विच इज अ जिगजैग, इसलिए उसको जेड नाम पड़ा. जिसशिप्स मेम्ब्रेन, जिगजैग लाइनिंग, डोबीज लाइन भी कहते हैं, या फिर क्रॉस मेम्ब्रेन भी कहते हैं. क्या कहते हैं? These are the name given to those part of the sarcomere. खुद एक सार्कोमियर किन किन चीजों से बना है, डायग्राम देख देख के याद हो जाना चाहिए. लिटरेचर पढ़ने में टाइम वेस्ट ना करें. सबको मेरी बात आ रही है समझ में? तो ठीक है, पैरेलल एरे में जो ऐसे अरेंज है और अरेंज होने के रहने, क्योंकि उनके बीच डिसकंटिन्यूटी, जैसे ये देखिए एक्टिन ये रहा यहां तक एक्टिन, फिर ये डिसकंटिन्यूस हुआ, फिर ये मौजूद है. सेम विथ मायोसिन. मायोसिन इधर भी है, लेकिन बीच में तो नहीं है ना जहां आई बैंड है. क्या है? तो नाउ यू पीप इनटू एनी बुक, आज ही जाके कोई क्वेश्चन बुक उठाए, सब बनेंगे आपसे. पहले ये डायग्राम तो याद हो जाए. व्हाट इज आई बैंड, व्हाट इज ए बैंड, व्हाट इट इज मेड अप ऑफ, उस एरिया में क्या क्या है और क्या क्या नहीं है. मसल कॉन्ट्रैक्ट कैसे करता है ये आज नहीं पढ़ा हमने, लेकिन व्हेनेवर अ मसल इन अ स्टेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन in a given sarcomere, the physical distance between two juxtaposition Z line shows some changes. Show some? What are those changes? Yani some bands remain as such, some bands disappear, some reappear and so on. क्वेश्चन के लैंग्वेज यही होंगे ना? सबको आ रहा है समझ में? थोड़ी देर के लिए मान के चलो ना कि हमें कुछ नहीं पता क्या क्वेश्चन आने वाला है, लेकिन ऐसे कुछ तो प्लानिंग करके पढ़ोगे. दैट्स द बेस्ट पार्ट. इसी को मेहनत कहते हैं, डिलीजेंस, व्हाइल यू परफॉर्म एनी वर्क. तो छोटी छोटी बातों को गौर करिए. ओके, नाउ ईच मायोफाइब्रिल इटसेल्फ ऑक्युपाई विद अ बंच लाइक स्ट्रक्चर, व्हाट वी कॉल. ये तो एक्स्ट्रा बात बताया गया कि हाँ दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट. क्या है, कभी कभी ऐसा क्यों बताया जा रहा है, जैसे ये क्यों बताया गया, एनसीईआरटी में तो ऐसा कुछ नहीं है. अब क्वेश्चन क्या आता है, विच ऑफ द गिवन, अलग अलग चैप्टर से बनाते हैं, वो तो मैं और भी ले सकता हूं, लेकिन मुझे तो अब 4 ही ऑप्शन लेने हैं. चैप्टर बायोडाइवर्सिटी से, बायोडाइवर्सिटी इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीसीज रिचनेस. अब वो सही है गलत है बाद में प्रूफ करते रहेंगे. मैं तो अभी ऑप्शन बना रहा हूं, मुझे जिस चैप्टर को पढ़ा रहा हूं वहां साबित करना है ना मेरे को. सबको आ रहा है समझ में? ऐसा लिखा है, ठीक है, अच्छी बात है. फिर लिखा है यूरिन इज 4 times मोर कंसंट्रेटेड देन, आ रहा है समझ में, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट. ब्लड इज, प्लाज्मा इज इक्वल टू ब्लड माइनस, और फिर ये लिखा हुआ है कॉलिकुलर्स कॉलम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेमिना. अरे आ रहा है समझ में? थोड़ी देर के लिए मान के चलो कि ये तीनों तो सही है, और क्वेश्चन में पूछा है विच ऑफ द गिवन प्रेजेंटेशन इज ऑड, या मतलब गलत, इनकरेक्ट. तो क्या होगा, ये यहां तक तो सही है क्योंकि कुछ ना ये सुना नहीं है, तो जज नहीं कर पा रहे. अब आ रहा है समझ में? अचानक वही क्वेश्चन हाई लेवल हो जाता है. क्या हो जाता है? अरे बहुत हाई लेवल क्वेश्चन, सोचना पड़ गया यार. साइकोलॉजी एक्चुअली हर व्यक्ति के साथ उसका जो भी वो एक्ट करता है उसकी साइकोलॉजी उसके साथ चलती रहती है, चाहे वो स्टूडेंट हो, कोई प्रोफेशनल हो, हुएवर इन एनी फील्ड. बट सक्सेसफुल वही पाता है जो अपने साइकोलॉजिकल इंपैक्ट और इमोशनल टर्बुलेंस से पार पाके अपना काम करे, वही सक्सेसफुल है. सबको मेरी बात आ रही है समझ में? डेफिनेटली वी ऑल आर इन एवरी टाइम स्टेट ऑफ इमोशन. 24 घंटे हम इमोशन में रहते हैं एवरी टाइम. आप इमोशन मतलब ये मत सोचिए कि सिर्फ दुख, खुशी, एक्साइटमेंट. एवरी टाइम, एवरी सेकेंड वी आर इन अ स्टेट ऑफ
इमोशन। अभी आप यहाँ बैठे हैं एज अ स्टूडेंट, सीरियसली लेक्चर सुन रहे हैं, दैट्स इज एन इमोशन। मैं यहाँ लेक्चर ले रहा हूँ इररिस्पेक्टिव ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स। मेरी बात आ रही है ना समझ में? यहाँ से क्लास छूटने के बाद मुझे और भी काम है, अब वही चीज दिमाग में अगर पंच होता रहा तो पता चला अब ऐसे करता रहूंगा यहाँ पर, अरे यस और नो, क्योंकि कहीं ना कहीं स्ट्राइक कर रहा है, तो आई हैव टू डिलीट दैट एंड परफॉर्म। सबको मेरी बात आ रही है समझ में? तो आप लोग थोड़ी देर के लिए समझे, कोई भी चीज एक्स्ट्रा और कुछ नहीं है, वो तो क्वेश्चन आ गया और अब आपको बात क्लियर है कि नहीं। तो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए छोटी छोटी इन बातों को ध्यान दीजिए, है ना। अब आज मैंने एक बार बता दिया, अब आपका होमवर्क क्या है, थ्रू आउट द ईयर पढ़ते हुए हर चैप्टर में ऐसे रिलेशंस है, तो कहीं ऐसा प्रेजेंटेशंस में नहीं लिखा रहता है, कभी कभी स्टेटमेंट लिखा रहता है ना, कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। आ रहा है समझ में ये चीज? चैप्टर रेस्पिरेटरी सिस्टम, अब इसको साबित करो, इसके न्यूमेरिकल्स भी बन सकते, क्यों नहीं आ सकता? एक व्यक्ति का हार्ट रेट इतना है तो बताइए कार्डियक आउटपुट कितना होगा फलाना। अब आप वो मैट्रिक सिस्टम है, इतने उतना तो इतना कितना, दैट्स द क्वेश्चन पैटर्न। इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस। सबको आ गया समझ में? तो यहां तक तो अब हम देख चुके हैं, मैं बार बार कह रहा हूं, इस पे आगे पहुंचने से पहले दिमाग में ये चीज बिल्कुल क्लियर, क्योंकि अब हम एक लेवल के बाद आगे बढ़ जाएंगे, फिर पीछे आने का कोई सवाल नहीं उठता। हर टॉपिक में ऐसा है, एक लेवल तक बार बार रिकॉल करना पड़ता है। एक बार शूट अप कर जाएंगे देन देयर इज नो चांस कि फिर पीछे जाके व्हाट इज मसल ऐसा तो नहीं कोई करेगा। पक्का? आगे बढ़े, यहां तक क्लियर है? अब इस अरेंजमेंट की वजह से लेट अस एक्सपीरियंस। अब आप देखिए मैंने कैसे कट किया, बिल्कुल एक ऐसा एरिया लिया, ये एरिया लिया मैंने ऐसा, लेट अस विद अ क्लोज विसिनिटी, बड़े नजदीक से जरा देखे तो क्या है वो खास अरेंजमेंट जिसमें एक्टिन मायोसिन जिस तरह से आगे पीछे होके पैरेलल एरे की तरह अरेंज होने के बाद स्ट्रेशंस तो जो भी देते हैं, बट इस अरेंजमेंट का सिग्निफिकेंस क्या है उसको समझने के लिए अब हमें इतने देर से हम मॉर्फोलॉजी, हिस्टोलॉजी, अल्ट्रास्ट्रक्चर में उसके फंक्शन स्ट्रक्चरल यूनिट तक पहुंच गए थे। अब हमें फंक्शनल यूनिट डिस्कस करना है, वेयर ईच सार्कोमियर अराउंड 2.1 माइक्रोमीटर इन लेंथ, ये डिस्टेंस इन रिलैक्स स्टेट, इन जब रिलैक्स होता है तो ये डिस्टेंस 2.1 माइक्रोमीटर का होता है ना, अनकॉन्ट्रैक्टेड, रिलैक्स्ड, जब एक मसल फाइबर पूरी तरह कैसा रहता है, रिलैक्स्ड, तो ये डिस्टेंस है। एंड अपीयर्स टू हैव इज इक्वल टू हाफ आई प्लस ए प्लस हाफ आई। ये भी एक प्रेजेंटेशन मिल गया आपको, सबको आ रहा है समझ में? तो थ्रू आउट द कोर्स आपको ये अलग से स्टडी, एक दिन बैठ के यही रिवाइज करते रहना किस किस चैप्टर में इस तरह के प्रेजेंटेशंस, रिलेशनशिप्स को हमने पढ़ा और वो रिलेशनशिप एक्चुअली क्या रिवील करता है, और उसको साबित करने में आपको खुद एहसास होगा कि आपको बहुत सारे कंसेप्ट्स याद आ जाएंगे। एम आई राइट और नॉट? जैसे ये जो प्रेजेंटेशन लिखा है, व्हाट्स द वे टू रिवाइज एनी टॉपिक, एक जरा सा माइन्यूट सा पॉइंट, यस सार्कोमियर इज इक्वल टू हाफ आई प्लस ए प्लस, इसको साबित करने के लिए अब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। आज घर पे जाके आपको ऐसे थोड़ी, घर पे बैठ के 10 मिनट में आप सिर्फ इस स्ट्रक्चर को रिकॉल करो, बाकी सब बातें तो ऐसी याद आ जानी चाहिए कि ऐसा ऐसा है। फाइनली हमेशा कोई भी टॉपिक पढ़ने के दो ही तरीके हैं, फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, या स्पेसिफिक से चालू करते 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 ब्रॉड सेंस में आ जाएंगे। आज क्लास ऐसी एंड होगा, पहुंच जाएंगे अंदर तक, फिर वापस रिकंसाइल करो, करते 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 कौन बन जाएगा, मसल बंडल, एंड ईच मसल बंडल इज एन ऑर्गन। किसी को कोई डाउट? बिल्कुल क्लियर यहां तक? लेट अस एक्सप्लेन सार्कोमियर। सार्कोमियर फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज बीइंग, है ना, इट इज बीइंग एक्चुअली रिकॉग्नाइज्ड बिटवीन टू जेड लाइन। Within the Z line, the two given actin and myosins arrange themselves in a very peculiar pattern, parallel to each other with an array. At the middle, you could see it is A band. It is, and the respective I band
है ना। अब हैंडमेड डायग्राम है, ये इसको थोड़ा और इस तरफ आना चाहिए था, तो क्या इक्वी डिस्टेंस दिखता है ना। ये थोड़ा इस तरफ दिख रहा है, ये एरिया थोड़ा ज्यादा दिख रहा है। आ रहा है समझ में? लेकिन होता बिल्कुल बीचों बीच है। बट वॉट एवर, सो आई, ये देखिए आप आई बैंड, वैसे ही यहां से लेके यहां तक ये रहा आई। आइसोट्रोपिक बैंड, anisotropic band. Anisotropic band is called dark band. And A band is characterized by presence of both actin and within A band, light band of dark band. क्या कहते हैं? है ना, डार्क क्या बोलते हैं, ये जो ए बैंड को अगर हम डार्क बैंड कह रहे हैं, तो उस डार्क बैंड का जो एरिया है, डार्क बैंड का जो एरिया है, उसमें भी आप बीचों बीच देखेंगे एक लाइट बैंड मौजूद है, ये रहा। ड्यू टू डिसकंटिन्यूटी ऑफ एक्टिन, ड्यू टू इस एरिया को कहते हैं एच जोन। क्या कहते हैं? आखिरी तक विजिबल हो नहीं पा रहा होगा, बट देन ऑल्सो मैं जो बोल रहा हूं उसको गौर करिए। ए बैंड, ये रहा ए बैंड, है ना, ऑक्युपाइड बाय बोथ एक्टिन एंड, बट अचानक आप बीचों बीच कंसंट्रेट करें, विद इन द डार्क बैंड अ लाइट जोन, एच जोन या लाइट बैंड इज प्रेजेंट ड्यू टू द डिसकंटिन्यूटी ऑफ व्हाट, एक्टिन, डिसकंटिन्यूटी ऑफ एक्टिन। फिर एक्टिन जो है, इट इज बीइंग हेल्ड या बाइफर्केटेड बाय, पेनिट्रेटेड बाय जेड लाइन, बाय, तो क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं, एक्टिन इज हेल्ड बाय जेड लाइन, जबकि ये जो मायोसिन फिलामेंट्स हैं उनके बीच ऐसा ट्राइलेमिनार 3 लेयर के पतला सा एक मेम्ब्रेन होता है, एंड दैट व्हाट होल्ड्स द मायोसिन। क्योंकि ये दोनों सब आगे पीछे, लेकिन ये खुद सार्कोप्लाज्म में हेल्ड कैसे, कहीं से तो सपोर्ट है, तब तो एक दूसरे पर ऐसे क्या करेंगे, स्लाइड कर पाएंगे, स्लाइड पास्ट। आ रहा है सबको समझ में? उस लाइन को कहते हैं एम लाइन, मीजोग्रेम लाइन। कौन सा लाइन? तो एम लाइन। तो कंप्लीट सार्कोमियर इज मेड अप ऑफ 5 कंपोनेंट्स। कितने कंपोनेंट्स? 2 लाइन्स, 3 बैंड्स। 2 लाइन्स, Z line, M line, protein membranes, and 3 bands, A band, H band, I band. लेकिन इनमें से कौन सा बैंड सार्कोमियर के अंदर हाफ कवर्ड होता है? दैट इज आई। और कौन से है जोन या बैंड कंप्लीटली ऑक्युपाई करते हैं सार्कोमियर को? ए एंड एच जोन, ए बैंड एंड एच बैंड, हेंसेंस बैंड, हेलेस बैंड भी कहते हैं उसको। ये आ गया सबको समझ में? And moreover has got cross arms. उसके टर्मिनल एंड्स पे क्या मौजूद है? इनको अभी क्रॉस ब्रिज नहीं कहेंगे, क्रॉस ब्रिज तब बनता है जो वो एक्टिन के साथ जुड़ता है। ये टेक्निकल, देखिए स्लैंग शब्द में हम चलती भाषा में तो दोनों टर्म्स आगे पीछे इस्तेमाल कर लेते हैं, बट पॉइंट टू बी नोटेड, उसका इस्तेमाल कैसे होगा। अभी फिलहाल ये रिलैक्स स्टेट में है, इनको हम क्रॉस आर्म कहेंगे। ये बनाते हैं फिर क्रॉस ब्रिज विथ एक्टिन, उससे एसोसिएट होने पर। अब वो क्यों बनते हैं, कहां से आते हैं, वही तो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में हम देखेंगे। फिलहाल ये पूरा कंसेप्ट समझ में आ गया। अच्छा, ये तो विद इन सार्कोमियर जब हम देखते हैं, लेकिन नाउ यू कुड सी कि पूरा ऐसा अरेंज थ्रू आउट द लेंथ ऑफ मायोफाइब्रिल, खुद मायोफाइब्रिल का लेंथ जितना कि मसल फाइबर का लेंथ होगा, ऐसा पूरा अरेंज होगा अंदर। लेकिन कहीं से भी बीच में से काटेंगे तो ये साइड डायग्राम से तो आगे पीछे पैरेलल एरे की तरह अरेंज है, लेकिन इसका क्रॉस सेक्शन सामने से देखेंगे, व्हाट इज द अरेंजमेंट। ये जो सिलिंड्रिकल फॉर्म शुरू से जो चलता है वो किसकी वजह से चलता है? एक्टिन और मायोसिन का आपस में एक रेशियो वाइज अरेंजमेंट। कैसा अरेंजमेंट? जिसको यहां से हम एक्सप्लोर करेंगे। गौर करिएगा, इस एरिया को मैं अब हाईलाइट कर रहा हूं।
ये रहा एक थिक मायोसिन फिलामेंट। एक मायोसिन फिलामेंट के चारों तरफ ऐसे 6 कितने 6 फिलामेंट्स एक्टिन के होंगे। एक मायोसिन फिलामेंट के चारों तरफ कितने फिलामेंट्स होंगे एक्टिन के 6, 1:6 का रेशियो। तो इसको तो मैं ऐसे लाइन डायग्राम से शो कर रहा हूं। अब इसको एक आर्बिट्री प्रेजेंटेशन डॉट से समझिए। ये रहा एक मायोसिन फिलामेंट, ये रहा एक्टिन फिलामेंट। एवरीवन थोड़ा बड़ा करके बनाया जाए, दिख रहा है पीछे तक? पूरे उसमें ये तो साइड वाइज डायग्राम है, ठीक है, पैरेलल एरे चल रहे हैं अंदर। लेकिन मसल फाइबर तो ये तो 2D डायग्राम है, बोर्ड पे बन रहा है। लेकिन मसल फाइबर से लेकर बंडल तक 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट। कैसा अरेंजमेंट? खुद एक मायोफाइब्रल सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर है। तो सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर वो कैसे गेन करता है? ये तो ठीक है, साइड वाइज ऐसे अरे होके अंदर अरेंज हो गए। ये रहा एक जेड लाइन मेम्ब्रेन की तरह अंदर, ये रहा थोड़े दूरी पे दूसरा जेड लाइन। ये एक थिक मायोसिन फिलामेंट, बीचों बीच बना। और ये रहे पतले पतले कौन से फिलामेंट? आया समझ में? इनके बीच ये रहा फिर एक ये। तभी तो मायोफाइब्रिल कैसा है, गोल। आया सबको समझ में? अब हम ऐसा नहीं समझना चाह रहे, हम तो इधर का अरेंजमेंट देख रहे हैं कि वो कैसे अरेंज्ड है। ऐसे अरेंज होने के बाद वो कैसे अरेंज है। दिस गिव्स एन हेक्सागोनल अपीयरेंस। कैसा अपीयरेंस? तो थोड़ी देर के लिए इनको आर्बिट्री प्रेजेंटेशन से ऐसे जोड़ दें। अंदर ऐसे जुड़े नहीं होते। अगेन बचपन से सोलार सिस्टम पढ़ रहे हो तो सन बीच में और ऑर्बिट्स दिखाते हुए, तो ऐसा थोड़ी कि स्पेस में भी ऐसी लाइन बनी हुई और उसी लाइन को पकड़ के सारे प्लैनेट चल रहे हैं। ये तो एक प्रेजेंटेशन है, दिस द पाथवे। तो वैसा ही यहां पर मैं उस हेक्सागोनल अरेंजमेंट को शो कर रहा हूं। आया समझ में? अंदर एक मायोफाइब्रिल के अंदर ऐसे ऐसे 1000 टू 2000, 1000 टू एक मायोफाइब्रल 1000 टू 2000 विद अ रेशियो ऑफ 1:6 और 1:3, 1:6 की रेशियो में। कैसे? आपको जैसे ये हेक्सागोनल अरेंजमेंट दिखाया है वैसे ही अब बीचों बीच ये रहा एक एक्टिन फिलामेंट, हेक्सागोनली कौन अरेंज्ड है? मायोसिन सराउंडेड बाय 6 एक्टिन। और ट्राइगोन की तरह कौन अरेंज्ड है? 1 एक्टिन एंड 3 एक्टिन is to myosin is to actin, 6 actin 1 myosin 3 myosin। तो अल्टीमेटली 1:2 एक्टिन is to myosin रेशियो क्या होगा?
आया समझ में? अब पीएमटी का क्वेश्चन, सबको पहले ये समझ में आया प्रेजेंटेशन? अराउंड 1000, गिनती में 1000 से 2000 सब मिला के, लेकिन 1000 हो चाहे 2000 हो फिलामेंट्स, जो दो तरह के होते हैं, थिन एंड थिक, यानी 200 होंगे मायोसिन, 800 होंगे एक्टिन। अरे यस और नो? रेशियो यही होगा। अब वो जब अरेंज होते हैं इस तरह से, वो अरेंज होते हैं हेक्सागोनल और ट्राइगोन, हेक्सागोनल एंड, इसको ना समझ में आया हाथ उठाए तो मैं पहले फिर से समझा दूं फिर आगे बढ़ूं। आ गया सबको समझ में? हाँ, कुछ लोग की शक्ल मुझे दिख गई थी, नहीं आया समझ। यहां तक आया समझ में? और ये रहा एक बंच मायोफाइब्रिल, लेकिन मायोफाइब्रिल खुद इनके वजह से, इनके गुच्छे के वजह से बना है। अभी तक आपने देखा यहां तक सिलिंड्रिकल अरेंजमेंट, कैसा अरेंजमेंट देखा? राइट फ्रॉम द बिगिनिंग टिल एंड, मसल बंडल से, ऑर्गन से लेके स्ट्रक्चरल यूनिट मायोफाइब्रिल तक आपने क्या देखा अरेंजमेंट? सिलिंड्रिकल बंडल। बंडल दिमाग में एक सिलेंडर का ही डायग्राम आएगा ना। बट ईच मायोफाइब्रिल इटसेल्फ, each myofibril itself is made up of 1000 to 2000 myofilaments. What are myofilaments? Actin and, तो 1000 से बने चाहे 2000 से बने, वो जो अरेंज होंगे दोनों तरह के फिलामेंट्स मिलाकर, वो दो तरीके से अरेंज होते हैं। एक्टिन और मायोसिन कैसे अरेंज होते हैं? 6:1। और मायोसिन और एक्टिन कैसे अरेंज होते हैं? 3:1। क्लियर? ये रेशियो आया समझ में सबको? उसी रेशियो को डायग्रामेटिकली दिखाया गया। व्हाट डू मीन बाय दैट? एक बीच में मायोसिन फिलामेंट थिक और 6 हेक्सागोनली अरेंज एक्टिन। अब बीच में एक एक्टिन को लो तो 3 मायोसिन। बस यही समझना था इसमें, ट्राइगोन और हेक्सागोनल अरेंजमेंट। यहां सिलेंडर बनेगा वो भी बंच ही, लेकिन ये बंच हेक्सागोनल और ट्राइगोन शेप में बंच बन रहा है, और अल्टीमेटली अरेंज होकर मायोफाइब्रिल को कैसा अरेंजमेंट देता है? सिलिंड्रिकल। क्लियर? नोट, अमाउंट ऑफ मायोसिन प्रोटीन, मायोसिन जो फिलामेंट है वो उसको बनाने वाला प्रोटीन, अमाउंट ऑफ मायोसिन प्रोटीन इज अबंडेंट इन अ मसल सेल। बहुत तरह के मसल्स प्रोटीन्स होते हैं। डेस्मिन प्रोटीन है, मीजोग्रेम प्रोटीन है जो एम लाइन बनाते हैं, खुद एक्टिन को बनाने वाले 3 तरह के प्रोटीन सब यूनिट्स जुड़ते हैं। लेकिन एक मसल के अंदर जितने तरह के भी प्रोटीन्स होते हैं, सबसे ज्यादा कौन सा प्रोटीन सबसे ज्यादा अमाउंट में होता है? अमाउंट बोला है, नंबर नहीं बोला है, क्योंकि इस प्रोटीन से बनने वाले फिलामेंट्स मायोसिन कम होते हैं, एक्टिन ज्यादा होते हैं। सबको मेरी बात आ रही समझ में? दो अलग अलग बातें। विच फिलामेंट इज मोर, एक्टिन की मायोसिन? तब आंसर होगा। और विच प्रोटीन इज मोर इन अमाउंट, या विच फिलामेंट इज मोर इन अमाउंट, अमाउंट बोलेंगे तब आंसर होगा। देखो यही बात सबको आ रहा है समझ में, इसलिए तो मैंने इस तरह से समझाया है। पॉइंट टू बी नोटेड, जिस तरह से हमने, देखो ना आप, जितना एक्टिन होगा उसका डबल, यही रेशियो है। मैथमेटिकल मीनिंग तो यही निकला ना, प्रूव हो गया। ऐसे तो और भी प्रोटीन है, डेस्मिन है, फलाना ढिमका, और भी जो भी है सब कंपोजिशन बताएंगे, बट पूरे मसल्स में सबसे ज्यादा अबंडेंट प्रोटीन अमाउंट में कौन होगा? मायोसिन। क्यों? क्योंकि उसी कोई मेजर, अभी मैं सब एक्टिन मायोसिन पे 8 से 9 डिफरेंसेस बोलूंगा, लिखवाऊंगा, उसके बाहर कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, वही आएगा क्वेश्चन, और वो साबित हो गया है, डायग्राम से साबित कर रहा हूं पहले। विच प्रोटीन, मसल प्रोटीन प्ले मोर रोल, मैक्सिमम रोल इन मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन? एक्टिन, मायोसिन, डेस्मिन, फलाना, ऑल द अबव, नन ऑफ द अबव? आंसर होगा मायोसिन। क्यों? क्योंकि उसके ही क्रॉस आर्म्स, उसके है ना, अपने प्रोपेलिंग एक्शन, अपने किस एक्शन से, है ना, जिसको पावर रेशेट थ्योरी कहते हैं। क्या कहते हैं? यानी नाव के चप्पू की तरह, जिससे हम रो करते हुए नाव चलाते हैं, ठीक वैसे एक्शन के साथ वो स्लाइडिंग एक्शन लाते हैं। तो दोनों एक्टिन मायोसिन एक दूसरे पे स्लाइड पास्ट करते हैं, बट द क्वेश्चन इज कौन करवाता है और कौन करता है? मायोसिन करवाता है, एक्टिन स्लाइड करता है। तो विच प्रोटीन प्ले मेजर रोल?
मायोसिन. विच प्रोटीन प्ले लेसर रोल? एक्टिन. दोनों का ही रोल है, लेकिन मेजर किसका है? ये सब मैं साबित कर दूंगा. पहले मैं कह रहा हूं ना, आज का डायग्राम हेडिंग ही है आज का कंसेप्ट. पहले एक मसल बंडल कैसा ऑर्गेनाइज है, उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए बिल्कुल ऐसे, अब एक टाइम के बाद ऐसा लग जाएगा कि रट गया है, क्योंकि दोबारा इसको ऐसे नहीं पढ़ना है. बस अब तो कंसेप्ट क्वेश्चन सॉल्व करने, आगे बढ़ जाने. फेसिकल्स. What is vesicle? They actually represents the true histology of a muscular tissue. Which muscular tissue? Striated muscle. यही तो सीखा आपने. क्यों? क्योंकि ग्रुप ऑफ सेल्स, क्योंकि एक फेसिकल खुद क्या है? बंडल ऑफ ग्रुप ऑफ सेल्स. विच सेल्स? मायोफाइबर, muscle cell, which appearance wise are striated. Why they are striated? Why those striations, alternate light and dark patterns are being experienced? Rohit and thank you. Finally, जस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज. अगला क्वेश्चन यही आता है कि स्ट्रेशंस क्यों है. उस बात को साबित करने के लिए लेट अस एक्सपीरियंस. यहां से चालू हुआ था फिर हमारा टॉपिक कि each muscle fiber is characterized by those alternate light dark patterns due to some unique cytological arrangement. वो अरेंजमेंट साइटोलॉजिकल लेवल पे है, और साइटोलॉजिकल लेवल पे डेफिनेटली सार्कोलेमा, उसको पील ऑफ किया है ना, छील दिया हमने. अरे ये आया सबको समझ में? हाँ. और अंदर क्या होगा? हर सेल की तरह बीइंग अ यूकैरियोटिक बॉडी सेल्स, साइटोप्लाज्म. बट इट इज नॉट ओनली साइटोप्लाज्म, इट इज अ यूनिक साइटोप्लाज्म ऑफ मसल सेल, रादर टू बी कॉल्ड. बहुत कुछ है उसके अंदर, फलाना ढिमका ब्ला ब्ला ब्ला. बट व्हाट वी आर इंटरेस्टेड, बिकॉज अ मसल, एनसीईआरटी यही तो कह रहा है, ईच मसल बंडल इज कैरेक्टराइज्ड बाय सम स्ट्रक्चरल यूनिट्स, कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट्स, सिलिंड्रिकल, ऐसा. Each myofibril itself is what? It's simply an arrangement, peculiar arrangement of some bunch of myofilaments, bunch of, in an parallel array to each other, thereby giving that appearance of striations leading to dark and light bands, where they are discontinuously placed. Where they are not only placed but discontinuously. देखिए ना आप, discontinuity आया सबको समझ में? And held by two membranes, Z line, Z membrane, M membrane. M membrane किसको हेल्ड करता है? मायोसिन को. Z line किसको हेल्ड करता है? एक्टिन को. ठीक है, ये पैरेलल एरे, और उसके वजह से एक जक्स्टापोजिशन, फिजिकल डिस्टेंस थोड़े थोड़े दूरी पे बनता है, देयर बाय मेकिंग दैट स्ट्रक्चरल यूनिट मायोफाइब्रिल. लेकिन खुद मायोफाइब्रिल जो बंच बन रहा है, वो बंच खुद किसका बंच है? मायोफिलामेंट्स का. वो मायोफिलामेंट्स खुद आपस में किस रेशियो में अरेंज्ड है ना? 1:2. फाइनली 1:2. लेकिन वो आया कैसे? बिकॉज बोथ आर प्लेस्ड इन एन एरे, आगे पीछे पैरेलली एक राउंड उसमें है ना. दैट इज 6:1, 3:1. फाइनली 1:2. तो अल्टीमेटली आउट ऑफ मेनी प्रोटीन्स इनसाइड द सार्कोप्लाज्म, the two functional protein which truly makes the muscle to achieve that contractile nature, among them which is the most abundant in amount, myosin. लेकिन उससे बनने वाले filaments, actin is more, actin filaments are more in number, myosin are less in number. filaments, ये तो वही बात होगी, एक चेयर है, बीच में एक सेंटर रॉड गया इतना मोटा, एक सिंगल, और साइड में पतले पतले ऐसी सपोर्टिव डिजाइन है चेयर का, मान के चलिए ऐसा राउंड घूम रहा है, ऐसे बना हुआ है. अब आप बताइए, अगर आपसे कोई पूछेंगे बताइए कौन से रॉड ज्यादा है, तो आप तो बोलोगे ना थिन रॉड्स 6 हैं और एक थिक रॉड बीच में सिंगल एक. लेकिन एक थिक रॉड बीच में जो है, उसको बनाने में जितना वजन का लोहा लगा इज मोर देन बाकी पतले पतले रॉड. अरे आया समझ में? आधा उसका. अरे कुछ आया समझ में? सिंपल सा लॉजिक है. एवरीवन, यहां तक बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर?
3:6, 1:2. ठीक है, अभी जस्ट मुझे थोड़ा कंटिन्यू कर लो, आई विल कम बैक टू यू, मतलब आता हूँ, है ना। पहले यहां तक सबको समझ में आ गया, यहां तक क्लियर है। मैं समझ गया हूं मैथमेटिकली तुम जो कह रहे हो ना, उसको अरेंज करके दोबारा आएगा तो 1:2 ही, डोंट वरी, है ना। अब देखो यहां अभी उस मैथमेटिक्स के पीछे मत पड़ जाओ, है ना। वो 1:2 ही आएगा, ठीक है, मेरी बात आ रही है समझ में। लेकिन अभी उस पीछे मत पड़, पहले यहां तक आया समझ में अरेंजमेंट, फिर वही है डेंटल फॉर्मूला, 16/16 काट के फिर बोलोगे एक ही दांत होता है। अरे कुछ आ रहा है समझ में, वेयर बायोलॉजी मीट्स मैथ्स एंड मैथ्स मीट्स बायोलॉजी, वो थोड़ा सा है कुछ डिफरेंस, तो वो अभी आ रहा हूं मैं उस चीज पे, आई विल प्रूव इट। अभी मुझे वो मैथमेटिक्स नहीं समझाना, यहां पर मुझे उस कंसेप्ट पे पहुंचना था। आर यू गेटिंग द कंसेप्ट? यहां तक का अरेंजमेंट पूरा क्लियर है? So now we are basically going to discuss the cytology of a muscle fiber. Now within, यहां से डायग्राम कंटिन्यू हो रहा है, विद इन अ मसल फाइबर, मसल सेल, मायोफाइब्रिल्स इस तरह से बंच की तरह। अब मैंने मायोफाइब्रिल्स को ऐसे साइज में बनाया है, एंड ईच मायोफाइब्रिल कंप्लीट आर सराउंडेड बाय, यू कुड सी दीज आर कॉल्ड टी ट्यूब्स। इनको क्या कहते हैं? टी ट्यूब्स और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और सार्कोप्लाज्मिक ऐसे कवर करते हैं पूरा। ईच मायोफाइब्रिल, द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ मसल, द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ
इज सराउंडेड बाय अ नेटवर्क ऑफ, ये जो पूरा नेटवर्क देख रहे हैं थ्रू आउट द लेंथ चलता है सबके साथ, मैंने समझाने के लिए एक के साथ बनाया है। और this is the sarcolemma, this is the, तो डेफिनेटली रेस्ट ऑफ द प्लेस विद इन दिस मसल फाइबर। अच्छा, इसमें अब यहां पर हम न्यूक्लियस शो कर सकते हैं ऐसे, इमेजिन कर, अरे अंदर एक ल्यूमन मतलब एक सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर बन रहा है सार्कोलेमा मसल फाइबर का, तो विद इन द स्पेस जो है दैट इज सार्कोप्लाज्म। और सार्कोप्लाज्म के अंदर क्या मौजूद है, ये ब्लैक कलर से यहां बने, ये ब्लू कलर से बने। नाउ दीज आर विद इन दिस सेल। इतने अल्ट्रा स्ट्रक्चर पे जाने के बाद वी आर नाउ कंसर्न दैट हाउ अ मसल फाइबर हैव गॉट इट्स यूनिक साइटोलॉजी, है ना, देयर बाय मेकिंग द ईच मसल फाइबर टू ऑपरेट एंड फंक्शन एज एन इंजन। कैसे वो अपने अंदर, नाउ दिस एक्ट लाइक ये पूरा एक सिलेंडर है और इसके अंदर ये पिस्टन्स हैं, क्या है ये, और ये पिस्टन्स कंटिन्यूसली जो है दे विल जनरेट दैट फोर्स टू ब्रिंग अ मीनिंगफुल मूवमेंट। लेकिन मायोफाइब्रिल्स को फंक्शनल कौन बनाते हैं, सार्कोमियर, क्योंकि खुद ईच मायोफाइब्रिल इट्स अ जक्स्टापोजिशन इंटरमिटेंट इक्विडिस्टेंट प्लेस्ड पोजीशन, जिन्हें हम सार्कोमियर कहते हैं, विद इन 2 जेड लाइंस। वहां तक हमने देख लिया। और उसके अंदर जो अरेंजमेंट एक्टिन मायोसिन ना केवल पैरेलल एरे की तरह बल्कि एक बंच, लेकिन वो बंच हेक्सागोनल और ट्राइगोन बनता है। कैसा बनता है, और रेशियो वाइज मायोसिन को बनाने वाला प्रोटीन, मायोसिन प्रोटीन का अमाउंट ज्यादा होता है, लेकिन उससे बनने वाले फिलामेंट्स आर लेस। एक्टिन ज्यादा, मायोसिन के फिलामेंट्स लेस होते हैं। दिख ही रहा है इस एरिया में, आप गिनिए ना, 1 2 3, एक्टिन ज्यादा होगा और मायोसिन कम। लेकिन मायोसिन को बनाने वाला प्रोटीन अबंडेंट मसल प्रोटीन है। क्यों, क्योंकि इट्स अ मोटर प्रोटीन। Now these are the terms used to generate the questions. मसल के किस प्रोटीन को मोटर प्रोटीन कहेंगे, एक्टिन को नहीं, जबकि दोनों एक दूसरे पर स्लाइड पास करते हैं, लेकिन मोटर प्रोटीन किसको कहेंगे। ये सब बातें अभी तो मैं स्टेटमेंट्स दे रहा हूं। नेक्स्ट क्लास बायोकेमिस्ट्री ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, डे आफ्टर टुमारो जो आपकी क्लास है उसमें वही पढ़ाऊंगा। लेकिन उसको समझने के लिए ये बेसिक स्ट्रक्चर अंदर क्लियर होना चाहिए। और आज आपने सीक्वेंस में मसल से रिलेटेड 4 चीजें सीखी, मतलब बाय द एंड ऑफ द चैप्टर on the class. How a muscle bundle being an organ, how it has been histologically designed, followed by cellular arrangement, followed by, and those cellular arrangement finally, जो cellular arrangement दिख रहा है यहां पर, वो cellular arrangement अल्ट्रा स्ट्रक्चर कैसे अंदर बियर करता है, एकोमोडेट करता है, ये पहले बताया गया। तो आज के बाद जब भी इस चैप्टर को आप रिवाइज कर रहे होंगे, आपको 4 बातें याद होनी चाहिए एट अ ग्लांस, वन आफ्टर द अदर। मॉर्फोलॉजी, हिस्टोलॉजी, अल्ट्रा स्ट्रक्चर एंड फाइनली, अब साइटोलॉजी इसलिए बताया जा रहा है तभी तो आपको पता चलेगा कि क्यों रेड मसल फाइबर, दैट इज स्ट्रेटेड मसल्स, 2 तरह के बने। वन व्हाट वी कॉल रेड मसल फाइबर, अनदर कॉल्ड, फिलहाल मैं आपके सामने जो डायग्राम बनाने जा रहा हूं और जिस तरह से उसका पूरा प्रेजेंटेशन, इट्स अ रेड मसल फाइबर, ऐसा समझ के, क्योंकि दोनों में से सबसे बेहतर अपनी फुल एट्रीब्यूट्स के साथ कौन है। हालांकि दोनों मसल्स का इंपॉर्टेंस अपनी अपनी जगह इक्वल है, वो तो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा।
लेकिन मैं एक ट्रांजिएंट नॉलेज होता है ना कि जब कंपैरिजन करके हम पढ़ते हैं, हम फाइनली कभी कभी कंक्लूड करके किसी एक को ज्यादा तवज्जो देते हैं। फिलहाल रेड और व्हाइट दोनों ही शरीर के लिए एरिया वाइज शरीर का कैसा हिस्सा है और उससे एक व्यक्ति अपने लाइफ टाइम में किस तरह के मूवमेंट कितनी फ्रीक्वेंसी से लेगा, इस पर डिपेंड करता है। किसी के शरीर में व्हाइट मसल्स किसी एरिया में डेवलप्ड है, किसी में रेड मसल्स। बट मैंने अपनी बात जो कही है कि दोनों में से मैं बेहतर को मानूंगा रेड को, क्योंकि रेड के पास एक चीज एक्स्ट्रा जो है जो व्हाइट के पास नहीं है, दैट इज मायोग्लोबिन। दैट इज, और वो एक ऐसा कंपोजिशन है जो रेस्ट ऑफ द बॉडी के सेल से खुद रेड मसल्स को बिल्कुल अलग बनाते हैं। तो क्या है मायोग्लोबिन और मायोग्लोबिन का अपना क्या रोल है, एंड सब्सिक्वेंट क्वेश्चंस। लेकिन उसको पहले डायग्रामेटिकली दिमाग में असेंबल कर लें। तो यही डायग्राम अब आपको मैंने सामने एलॉबरेटेड वे में बनाया है। मैंने ये पूरा ऐसा यहां से पील ऑफ कर दिया। ये रहा आपका वो मसल फाइबर सेल, आउटर मोस्ट सार्कोलेमा, और सार्कोलेमा के ऊपर फिर से यानी देखा जाए इसको भी जो है रेड कलर, सबको आ रहा है समझ में कौन सा कलर मुझे इसके ऊपर बनाना चाहिए? क्यों? क्योंकि ये क्या है, ये है सार्कोलेमा। इसके ऊपर क्या मौजूद है जो यहां से यहां कंटिन्यू होगा, इसके ऊपर भी। नाउ द स्पेस ऑक्युपाइड सार्कोप्लाज्म। अब मुझे मायोफाइब्रिल से मतलब नहीं है, मायोफाइब्रिल तो है और कैसा होता है सब देख लिया। अब मायोफाइब्रिल के चारों तरफ बाकी क्या चीजें हैं जो सार्कोप्लाज्म में पाया जाता है, पहले मैं लिस्ट तैयार कर लूं। यह स्ट्रिक साइन यहां रिवील हो रहा है। मायोफाइब्रिल सार्कोप्लाज्म में, नेक्स्ट, और बारी बारी से सीक्वेंस में मायोफाइब्रिल्स तो है, बाहर से आते हैं। पहले तो मोटर एंड प्लेट क्या मौजूद है, क्या मौजूद है? मोटर एंड प्लेट। क्लियर? नेक्स्ट, मोटर एंड प्लेट्स कंटिन्यू विथ टी ट्यूब्स। देखो सीक्वेंस में बिल्कुल, क्यों? क्योंकि नेक्स्ट क्लास में जब आपको केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन है, हम इंपल्स कैसे कंडक्ट होता है, कैसे, एनसीईआरटी में लिखा है ऑन द अराइवल ऑफ इंपल्स। इफ यू गो थ्रू द पैराग्राफ टुडे, आज ही घर पे जाके आप पढ़िए उस पैराग्राफ को, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, ऑन द अराइवल ऑफ इंपल्स फ्रॉम द नर्वस सिस्टम थ्रू द मोटर नर्व, थ्रू द, फिर तो बहुत ही प्रिसाइसली बात को खत्म करके आगे सीधा सीधा समझाया गया कि कैसे वो क्रॉस ब्रिज बनता है और टूटता है एंड सो ऑन। लेकिन उसकी एक एक लाइन को समझने के लिए ऐसे पहले याद होना चाहिए कि यस, ईच मसल सेल मायोफाइबर साइटोलॉजिकली कैरेक्टराइज्ड बाय आउटर मोस्ट लेयर सार्कोलेमा। वो तो हिस्टोलॉजिकल प्रॉपर्टी की उसके ऊपर भी एक फाइन कवरिंग होती है, किसका? एंडोमाइसियम का। दिमाग में हर टॉपिक की कंटिन्यूटी रहनी चाहिए, तभी तो आप कनेक्ट कर पाओगे जब सेल्फ स्टडी करोगे। क्लियर? ठीक है वो सब। बट विद इन दी सार्कोलेमा एनक्लोजिंग द साइटोप्लाज्म, नाउ सार्कोप्लाज्म इज यूनिक। फर्स्ट ऑफ ऑल, ब्रॉडली अपेरेंटली आंखों देखा एक मसल फाइबर के अंदर पूरे सार्कोप्लाज्म में मेन एलिमेंट कंपोजिशन क्या दिखता है? मायोफाइब्रिल्स। क्या दिखते हैं? वो क्या है वो पहले ही अलग से पढ़ा दिया। और वही मायोफाइब्रिल्स वाकई में एक स्ट्रेटेड मसल फाइबर को स्ट्रेशंस देते हैं, स्ट्रिप्ड अपीयरेंस देते हैं एंड अदर रेस्ट अल्ट्रा स्ट्रक्चर, जिसमें दो कैरेक्टरिस्टिक फिलामेंट्स का नाम सामने आया, एक्टिन एंड, खुद क्या एक्टिन है क्या मायोसिन है इनके बारे में तुम पढ़ेंगे। खुद एक्टिन तीन चीजों से बना है, मायोसिन सब यूनिट से बना है, मीरोमायोसिन। खुद एक मीरोमायोसिन गोल्फ स्टिक की तरह, हॉकी स्टिक की तरह स्ट्रक्चर है विथ इट्स टेल एंड एंड हेड एंड, HMM एंड LMM। क्यों HMM, क्यों LMM? रीजनिंग। ये तो मैं आपको एक तरह से मगअप करा रहा हूं, याद करा रहा हूं पहले, लेकिन फिर रीजनिंग कि उस एंड को ऐसे ही क्यों बनाया, फलाने एंड पे ऐसा क्यों है।
व्हाट इज ट्रू रिगार्डिंग मायोसिन? क्वेश्चन क्या बनेगा अल्टीमेटली? इतना कुछ जो ऐसा पढ़ रहे हो, फाइनली एक्टिन और मायोसिन होता है, कौन किससे ज्यादा? कंपैरेटिव क्वेश्चन। मायोसिन के बारे में क्या स्टेटमेंट सही है, या हाउ मायोसिन इज मोर क्रूशियल ओवर एक्टिन प्लेइंग मेजर रोल फॉर मस्कुलर कंट्रैक्शन। रीजंस, 4 लाइन, वही 4 ऑप्शन, 3 लाइन लिखे, आंसर ऑल द अबव होगा। नंबर 1, इट हैव क्रॉस आर्म, जो कि एक्टिन के पास नहीं है। नंबर 2, इट परफॉर्म्स द स्लाइडिंग एक्शन, यही करता है। इट एक्ट एज एन एंजाइम, इट एक्ट एज एन, दोनों में से कौन सा प्रोटीन एंजाइमेटिक रोल प्ले करता है? मस्कुलर, उसका हेड रीजन मतलब मायोसिन करता है। ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ये सारे रीजन सही है। सबको आया समझ में? मतलब पढ़ो तो आप एनसीईआरटी जाके, और फिर क्वेश्चंस तो खुद बनाओ। अब आया समझ में, कोई किताब देखने की जरूरत नहीं है। एम आई राइट और नॉट? कहाँ तुम वो प्रैक्टिस करोगे 200 क्वेश्चन, है ना, अपने आप को बिल्कुल, है ना, वही पंचांग देख के आज जूलॉजी पढ़ने का अच्छा शुभ समय, और फिर बुक लेके बैठ गए, उसमें भी 10 क्वेश्चन लगाओगे, पीछे आंसर देखोगे 5 बना, 5 नहीं बने। क्यों नहीं बने? बफरिंग शुरू, वो जो जैसे कंप्यूटर में नहीं होता, ऐसा गोल गोल घूमता है, वैसे तुम्हारा दिमाग भी बफर करना चालू। हैव कॉन्फिडेंस, पहले दिन से दिमाग में रखो, पढ़ना चालू किया है तो टॉपिक को बिल्कुल एक बोलते ना फाइन एज देंगे, ब्लंट एज नहीं देंगे टॉपिक को। बिल्कुल पहले शुरू होते से कि ऐसा ऐसा है, कंटिन्यूटी बनाए अपने एक्सप्लेनेशन को, ऐसा है, फिर ये है, फिर फलाना अरेंजमेंट साथ में ऐसा चलता है। तो पूरे एक मसल फाइबर का बाकी सब कुछ देख चुके हैं, लेकिन उसकी सार्कोप्लाज्म को मैं बार बार जो जोर दे रहा था व्हाइल माय एक्सप्लेनिंग कि इट इज अ यूनिक कॉम्पोजिशन, मायोफाइब्रिल तो देख चुके हैं, वो एक अलग पूरा अरेंजमेंट है। 2 चीजें, दोनों के बारे में देखेंगे। मैंने सिनॉप्सिस में लिखवाया भी तो है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन, वहां से शुरू होगा, फिर बायोकेमिस्ट्री समझेंगे नेक्स्ट क्लास में। लेकिन उससे पहले बाकी पूरा मसल सेल कैसे ऑर्गेनाइज्ड है, कोई भी टॉपिक उठाओ, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आज ही जाके पढ़ो तो, अरे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है? ऑर्गन्स और ग्लैंड्स, 3 ग्लैंड्स एक तरफ, ऑर्गन्स जितने भी बाकी हैं, बाकी सब ऑर्गन्स में एक ही मेन स्ट्रक्चर है, टेस्टिस, जिसकी हिस्टोलॉजी पहले क्लियर हो, क्योंकि बाकी सब तो डक्ट है। क्या है? द होल मेल सर्कुलेट, क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज कैरेक्टराइज्ड बाय डक्ट सिस्टम, इंट्रा एंड एक्स्ट्रा। कुछ डक्ट अंदर हैं और उनको पैकिंग की गई है इनसाइड स्ट्रक्चर, ट्यूनिका एल्बुजिनिया, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ट्यूबुला इरेक्टा, रेटिटेस्टिस, वास इफरेंस, 4 अंदर 4 बाहर, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, इजैकुलेटरी डक्ट, यूरेथ्रा, यूरेथ्रा को यूरिनोजेनिटल डक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? है ना, वाह, टॉपिक खत्म। अरे ये सर, मतलब थोड़ी देर के लिए एनसीईआरटी खत्म। नहीं ठीक है, थैंक यू, बट ऐसा नहीं है। मेरे से पढ़ोगे तो कोई भी टॉपिक ऐसे ही नहीं खत्म होगा, थोड़ा तरीके से खत्म होगा। मतलब खत्म मतलब सही मायने में खत्म, मतलब ये नहीं गया। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्या हम पढ़ रहे हैं। तो ये सब तो देख लिया, इतनी देर तो यही डायग्राम बना हुआ था, लेकिन क्या सार्कोप्लाज्म अंदर वैकेंट है? अब क्या खाली है, हवा भरा हुआ है? नहीं, इट हैज गॉट सम अदर एलिमेंट, टी ट्यूब्स, मोटर एंड प्लेट, मोटर एंड प्लेट, टी ट्यूब्स जाके बनाते हैं ट्रायड सिस्टम। अभी अभी मैंने जो रखा कि मोटर एंड प्लेट, टी ट्यूब्स, ट्रायड सिस्टम, व्हाट इज ट्रायड सिस्टम? उसके बाद सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ मसल सेल्स, स्टेटेड मसल्स भी यूनिक होते हैं, इसलिए उनको सार्कोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? अब यूनिक क्यों बोले सर? माइटोकॉन्ड्रिया, उसमें वही एंजाइम्स होंगे, वही क्रेब्स साइकिल चलाने के लिए सब कुछ है, बट वो एक सिंक्रोनाइजेशन करते हैं लिवर के साथ और ब्लड के साथ। किसके साथ? जो बाकी के सेल्स नहीं करते, जिस तरह का, उसको कोरी एंड कोरी, इस मेटाबॉलिज्म को क्या कहते हैं? कोरी एंड कोरी साइकिल। क्वेश्चन आता है उस पर, सबको मेरी बात आ गई समझ में? एनसीईआरटी में सब नहीं लिखा है, लेकिन एनसीईआरटी ने एक लाइन में साबित करूंगा, एक लाइन लिखा है ना, कि रिग्रेस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो है फिर क्या होता है, फटीग, क्या कंडीशन क्रिएट होता है, विच इज बीइंग रिलैक्स्ड टाइम देयर ऑफ, कुछ समय बाद ही। एनसीईआरटी में जो ये लिखा हुआ है, ये कौन करवाता है? विच इज दैट मेटाबॉलिज्म विच हेल्प्स टू रिबाउंड फ्रॉम, है ना, ओवरकम फ्रॉम फटीग कंडीशन? आंसर है कोरी एंड कोरी साइकिल, जो 3 बॉडी के कैरेक्टरिस्टिक सेल्स के बीच चलता है, मतलब ब्लड के सेल, ब्लड, लिवर सेल
एंड मसल्स, स्ट्रेटेड मसल सेल, मायोसाइट। तो क्या वो ट्रायंगल रिलेशनशिप है हम पढ़ेंगे, लेकिन उसके लिए पहले सार्कोसोम और फाइनली मायोग्लोबिन। तो ऐसा है फिलहाल। मोटर एंड प्लेट क्या होता है? ये जो पूरे सरफेस पे थोड़े थोड़े दूर पे ऐसे डिप्रेशंस बने हुए हैं, क्या बने है ना, पिट्स की तरह दिखते हैं। दीज आर मोटर एंड प्लेट, क्योंकि इन पर आके ही ये जो न्यूरॉन्स के टीलोडेंड्राइट्स, सिनेप्टिक नॉब, कौन, टर्मिनल बटन, सिनेप्टिक नॉब आके इनके अंदर अपने आप को एडजस्ट करेंगे और तब बनेगा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। क्या बनेगा? रादर कॉल मोटर एंड प्लेट। जहां मोटर एंड प्लेट मतलब पूरे सार्कोलेमा और एंडोमाइसियम दोनों ने मिलकर उस डिप्रेशन को बनाया, क्योंकि ये तो मैंने ऐसे दूर दूर बनाया, लेकिन वो तो आपस में चिपके हैं एक के बाद एक। तो जो पिट्स, छोटे छोटे गड्ढे बनते हैं, डिप्रेशंस बनते हैं, उनको कहते हैं हम मोटर एंड प्लेट, जिस पर आके हमेशा नर्वस सिस्टम के कौन से नर्व फाइबर्स, मोटर, कौन से, क्योंकि मसल बंडल इज एन इफेक्टर ऑर्गन। कैसा ऑर्गन? और सीएनएस से जब भी कोई नर्व फाइबर आके शरीर के किसी भी हिस्से पे इंपल्स सप्लाई करता है, दैट इज कॉल्ड मोटर नर्व, दैट इज कॉल्ड। तो मोटर नर्व आके जब एक एक मसल फाइबर के साथ ऐसे जुड़ता है, उस जुड़ने वाले जगह को कहते हैं मोटर एंड प्लेट। और जुड़ने के बाद जो ऑर्गेनाइजेशन, जो सेटअप बनता है, इज अ टाइप ऑफ गैप जंक्शन, इज अ टाइप ऑफ अटैचमेंट गैप जंक्शन कॉल्ड न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, कॉल्ड। क्लियर? ये आया समझ में? अच्छा, फिर जहां जहां ये डिप्रेशंस होते हैं उससे थोड़े दूर पे ऐसे ओपनिंग्स होते हैं, दीज आर कॉल्ड टी ट्यूब्स। क्या कहते हैं इसे? ये रहा बीच में टी लिख रहा हूं, टी ट्यूब्स, ये बीच में। और वो टी ट्यूब्स जाके जुड़ते हैं, है ना, दोनों लैटरली, दोनों तरफ, थ्रू आउट, ऐसे थोड़े थोड़े दूर पे बने रहते हैं ये टी ट्यूब्स, थोड़े थोड़े दूर पे अलोंग दी लेंथ। मैं तो एक एरिया से समझ रहा हूं। ये ट्यूब्स जुड़े हुए हैं सिस्टरने ऑफ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस एरिया को कहते हैं सिस्टरने ऑफ एसआर, सार्कोप्लाज्मिक, और ये बाकी ये रहा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एसआर, एसआर, जो पैरेलल चलते हैं अलोंग दी मायोफाइब्रल। तो टी ट्यूब्स क्या होते हैं? जैसे ही यहां से इंपल्स अंदर ट्रेवल करेगा, इस टी ट्यूब के अंदर डिस्ट्रोफिन प्रोटीन, कौन सा प्रोटीन होता है, वो उस इंपल्स को कैरी करके ले जाता है सिस्टरने तक, जहां स्टोर रहता है कैल्शियम। क्या स्टोर रहता है? स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम। आ रहा है सबको समझ में? यही तो लिटरेचर लिखा है। A muscle fiber is cytologically characterized by two components, sarcolemma, endomysium भूल जाओ, sarcolemma, sarcoplasm. Within the sarcoplasm are present structure, यही तो पढ़ा रहा है सुबह से, structural units, contractile units made up of myofilaments and so on, called bunch of myofibril colliculus column directly proportional to the stamina. तो एक व्यक्ति जितना प्रोटीन डाइट लेगा, वर्कआउट करेंगे, इसका नंबर बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि ये बढ़ेंगे। ये क्यों बढ़ेंगे? क्योंकि इनको बनाने वाले उन प्रोटीन्स का इस्तेमाल करके एक्टिन और मायोसिन बनेगा। जितना वो बनेगा उतने ये थिक बनते जाएंगे, नंबर बढ़ता जाएगा। उस व्यक्ति का एक एक मसल फाइबर थिक होता जाएगा, उससे उसका फेसिकल थिक होगा, लेंथ में भी और विद में भी। यस और नो? फिर उसको जितना वो यूटिलाइज कर करके एक्टिव है, उसका शरीर मसल टोनिसिटी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? एक्स्ट्रा लेंथ गेन करना शेप वाइज, दैट इज कॉल्ड मसल। दिस इज द मस्कुलर प्रॉपर्टी। और इसी मस्कुलर प्रॉपर्टी का इस्तेमाल प्रोफेशनली बॉडी बिल्डर इस्तेमाल करते हैं। कौन इस्तेमाल करते हैं? नाउ ड्रामेटिक क्वेश्चन, अ बॉडी बिल्डर यूजेस विच मस्कुलर प्रॉपर्टी टू शेप अप देयर बॉडी? टिटनेस, फटीग, मसल टोन, स्पाज्म। क्वेश्चन आया समझ में सबको?
लेकिन खुद मसल की टोनिसिटी का संबंध किससे है? स्टेमिना से। स्टेमिना का संबंध किससे है? उल्टा जाओ। सबको आ रहा है लॉजिक समझ में? एवरीवन? तो किसी भी चैप्टर के क्वेश्चंस क्या होंगे, किस चैनल से किस तरह से बनेगा, वो सब डिसाइड आखिरी में होता है। पहले पढ़ तो लिया जाए पूरा है क्या सेटअप। किसी को कोई डाउट? तो मोटर एंड प्लेट, टी ट्यूब्स, ये सब हो, मैं साबित कर रहा हूं धीरे धीरे एक एक करके अरेंजमेंट। टी ट्यूब्स जिसमें डिस्ट्रोफिन, और यही डिस्ट्रोफिन प्रोटीन अगर जेनेटिकली बनाने वाला जीन डिफेक्टिव हो और वो ना बने, ना अवेलेबल हो, बट दैट इज अनदर कंसेप्ट। और वो कैसे इनहेरिट होता है और वो सब अपने आप में क्लास टॉपिक है, यस और नो। लेकिन वो कहां और कैसे रोल प्ले करता है ये यहां साबित हो गया, क्योंकि हम अभी ऑर्डर पढ़ रहे हैं, डिसऑर्डर से तो अभी मतलब ही नहीं है। ठीक है, उसने ये काम किया और कैल्शियम रिलीज होगा, यहां से तो कहानी चालू होती है, व्हाट इज द बायोकेमिस्ट्री ऑफ मस्कुलर। और जैसे ही कैल्शियम रिलीज होगा, अचानक किस, है ना, इन कॉन्ट्रैक्शन स्टिमुलस अवेयर होने पे किस आयन का कंसंट्रेशन पूरे सार्कोप्लाज्म में तेजी से बढ़ जाता है? कैल्शियम आयंस तुरंत रिलीज होता है, वो जाकर एक एक मायोफाइब्रिल, आप समझ ही गए, घेर के बना रखा है, क्योंकि खुद एक मायोफाइब्रिल किसके बने? एक्टिन। और फिर वो जाके वहां क्या केमिस्ट्री चेंज कर देते हैं, ओरिएंटेशन, यही तो मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। लेकिन उसके पहले टी ट्यूब्स यहां तक आया समझ में? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम आयंस। व्हाट इज ट्रायड? व्हाट इज? बेटा 1 मिनट, क्लास के बीच ऐसे डिस्टर्ब करोगे तो नहीं चलेगा। जो भी किसी के पर्सनल डाउट्स हैं, मैं क्लास के बाद यहाँ अवेलेबल हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है ना? Triad system made up of T tubes and lateral cisternae of, what is triad? Triad system in muscle sarcoplasm is made up of T tubes and 2 lateral, आजू बाजू कौन? cisternae of sarcoplasmic reticulum। इससे एक और क्वेश्चन डिजाइन होता है। एक आज आपने देखा ट्रायड सिस्टम, ऐसे ही जब डाइजेस्ट सिस्टम पढ़ते हैं उसमें लिवर में होता है पोर्टल ट्रायड। क्या होता है? ग्लिसन कैप्सूल्स में थोड़े थोड़े दूर पे हेक्सागोनली प्लेस्ड एरियाज में जो है विद इन अ पोर्टल ट्रायड, है ना, एक डक्ट्यूल होता है, एक आर्टरी और एक वेन या लिम्फ वेसल के साथ, ट्रायड अरेंजमेंट। तो पोर्टल ट्रायड पाया जाता है लिवर में, पोर्टल ट्रायड पाया जाता है, और ट्रायड सिस्टम पाए जाते हैं मसल। व्हाट इज ट्रायड सिस्टम? ट्रायड सिस्टम इज अरेंजमेंट, परपेंडिकुलर अरेंजमेंट along the length of, perpendicular arrangement along the length of muscle fiber, थोड़े थोड़े दूर पे, where each portal triad is made up of T tubes and laterally arranged या attached cisternae of। एक क्वेश्चन बहुत पहले आया था कि मतलब पूरे मसल्स के अंदर कैल्शियम सबसे ज्यादा कहां स्टोर होता है? ऑप्शन टी ट्यूब्स, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सिस्टर्ने ऑफ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑल द अबव। आंसर होगा ना, अगली क्लास में मुश्किल से 45 मिनट में पूरी केमिस्ट्री वो सब कुछ समझा के खत्म कर देंगे। रेड और व्हाइट मसल्स के डिफरेंस अगले, उससे पहले मैं पूरा जैसा आज समझाया वैसी कंटिन्यूटी में पूरा लिटरेचर लिखवा दूंगा, जिसमें रिवीजन भी हो जाएगा, क्वेश्चन ओरिएंटेड कुछ और बातें जो आज मैं शायद अपने एक्सप्लेनेशन में ना कवर पाए, जो एक्टिन और मायोसिन के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के डिफरेंसेस, कौन सा एरिया एटीपेस का काम करता है, कैसे करता है, आ रहा है सबको समझ में? तो सब लोग कंटिन्यू हो पाए? कहां से आज स्टार्ट किया, कैसे हम एंड कर रहे हैं? तो मोटर एंड प्लेट देखा, टी ट्यूब्स, ट्रायड सिस्टम, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सार्कोसोम। 2000 कुछ नहीं, बस माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है ना, ऐसे बना दिया, लेकिन अगर कट लग गया है तो अंदर ऐसे होते हैं उसमें, दीज आर सार्कोसोम्स। और एट लास्ट पिगमेंट स्प्रेड थ्रू आउट।
मायो मायोग्लोबिन क्या है ये? imparting red color to the muscle cell, thereby making it as red muscle fiber. बाकी तो सिंसिशियल न्यूक्लियस मल्टी न्यूक्लियट कंडीशन पेरिफेरी में होते हैं. कहां होते हैं? हमेशा आप देखिएगा बीच में कहीं नहीं होता, वो बिल्कुल जहां सार्कोलेमा है उसके साथ टच रहते हैं, मतलब यहां कहीं ऐसे बना दे. ये रहा एक न्यूक्लियस जहां सार्कोलेमा है वहां पर रहते हैं न्यूक्लियस. इतने से एरिया में 3 न्यूक्लियस थोड़ा आगे पीछे पेरिफेरी में. तो पॉइंट टू बी नोटेड, cytologically a muscle fiber is made up of sarcolemma, the outermost plasma membrane layer, characterized by presence of motor end plate, है ना, invagination से, which continues into the T tubes, which hold dystrophin protein, carrier protein dystrophin उसके अंदर मौजूद होता है. Moreover, T tubes, yeah, indeed, the complete sarcolemma internally first of all hold the liquid part, that is cytoplasm, called sarcoplasm. Foremost sarcoplasm is apparently mainly characterized by किसकी मौजूदगी से? myofibrils. पीछे जाएं इधर, क्या होते हैं myofibrils? But apart from myofibrils, which actually going to make the complete muscle fiber functional to generate that shortening activity followed by relaxation, shortening, lengthening, but myofibril does it, perform it by presence of some allied extra arrangements within the sarcoplasm. Those are motor end plate, T tubes. पहले तो याद हो जाए, फिर वो खुद क्या है और उनका क्या रोल है. ट्रायड सिस्टम, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सार्कोसोम, मायोग्लोबिन. मायोग्लोबिन तो जो है एक ऑक्सीजन स्कैवेंजिंग मॉलिक्यूल है, पिगमेंट मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन स्कैवेंजिंग. सही बात है, छीन लेता है. मैंने स्कैवेंज वर्ड यूज किया है, मैंने बाइंडिंग वर्ड, बाइंड तो करता ही है, वो तो है उसकी केमिकल एफिनिटी, वो तो हीमोग्लोबिन भी करता है. हीमोग्लोबिन छीनता नहीं है, हीमोग्लोबिन बाइंड करता है अंडर सर्टेन कंडीशन, उसको पार्शियल प्रेशर डिफरेंस क्या कहते हैं, जो हमारा शरीर मेंटेन करता है बाय नेगेटिव प्रेशर ब्रीदिंग. कैसे मेंटेन करता है? बाहर 1 एटमॉस्फेयर, अंदर उससे भी कम. देयर बाय एनाटॉमिकली फर्स्ट ऑफ ऑल डिजाइनिंग द थोरैसिक कैविटी एज अ रिब केज. ऐसा याद आ रहा है सबको कंसेप्ट? वो एक अलग रिलेशनशिप है. हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन आर सिमिलर इन देयर फंक्शन बट विथ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी. हीमोग्लोबिन सिर्फ बाइंड करता है कंडीशनली, अगर उसको वो कंडीशन अवेलेबल हो गया जिसको डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर से हम समझते हैं, जो हमारा शरीर मेंटेन करता है अंदर. देयर आर 3 लॉज व्हिच वर्क्स इनसाइड द लंग्स: फिक्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, हेनरीज लॉ ऑफ डिफ्यूजन एंड डाल्टन्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, पार्शियल प्रेशर डिफरेंस. ये 3 नियम हमारे लंग्स अपने एल्विलाई से मेंटेन करते हैं, हेंस वी आर हेल्दी. और जहां इन तीनों नियम में से एक भी चैलेंज हो गया, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स बिगिन. तो कंसेप्ट्स को आप समझे अच्छे से. अभी मैंने इसके बारे में जो बात रखी है कि मायोग्लोबिन की क्या खास बात है, ठीक है, सार्कोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया का क्या रोल है, क्यों उसको सार्कोसोम नाम दिया, साबित हो जाएगा नेक्स्ट क्लास में. फिलहाल इनका तो हमने देख ही लिया अरेंजमेंट. तब तो जाके मायोफाइब्रिल तैयार है विद देयर अरेंजमेंट, पैरेलल एरे, इनएक्टिव और एक्टिव होने के लिए. इनएक्टिव और जैसे ही क्रॉस आर्म क्रॉस ब्रिज बनता है, सार्कोमियर एक्टिव हो चुका है. सार्कोमियर एक्टिव मतलब एक मायोफाइब्रिल एक्टिव. पूरा का पूरा मायोफाइब्रिल यानी मसल सेल एक्टिव मतलब फेसिकल, पूरा फेसिकल मतलब मसल बंडल, उस एरिया में आएगा मूवमेंट. लेकिन इस काम को सही ढंग से बोलते ना एकम्प्लिश, अंजाम देने के लिए जिम्मेदार है मायोग्लोबिन, क्योंकि वो ना केवल ऑक्सीजन को बाइंड करता है बल्कि उसकी एबिलिटी क्या है, स्कैवेंजिंग, छीन लेना. क्यों? क्योंकि जब शरीर में P50 वैल्यू है ना, P50 वैल्यू क्या चल रहा हो, ऑक्सीजन, मैंने वो वेनस ब्लड, मायोग्लोबिन की क्या एबिलिटी है, वेनस क्या बोलते हैं, मायोग्लोबिन की क्या एबिलिटी है, वो किस तरह के ब्लड से ऑक्सीजन कैरी कर सकता है, वेनस. जब किसी एरिया से वेनस ब्लड यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है,
वहां से वो ऑक्सीजन, क्यों? क्योंकि इसकी खुद की P50 वैल्यू 5 mmHg है। कितना है? आ रही है मेरी बात समझ में? नहीं आ रहा होगा, क्योंकि इसके लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा होना चाहिए। देयर आर 3 molecules in human body in different state. One is myoglobin, another is fetal hemoglobin and adult hemoglobin A. सबसे कम P50 वैल्यू 5 mmHg, उससे ज्यादा 15 और उससे भी ज्यादा 30 mmHg। यानी बाहर का प्रेशर जब 100 होगा, कितना होगा? ऑक्सीजन का प्रेशर 100, और हमारा हीमोग्लोबिन तो 30 mmHg से भी ऑक्सीजन ले सकता है, इतने प्रेशर पे भी। ये उसकी एबिलिटी है। उससे भी कम किसका होता है? फीटस के हीमोग्लोबिन का, क्योंकि मदर से जो ब्लड में ऑक्सीजन होगा, बच्चे का हीमोग्लोबिन की एफिनिटी और ज्यादा होनी चाहिए, तभी तो प्लेसेंटा से एक्सचेंज होगा। मदर का हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन छोड़ देगा और बच्चे का हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरी कर पाएगा। यस और नो? उससे भी कम किसके पास है? मायोग्लोबिन। एमओ मतलब मायोग्लोबिन। तो दीज आर द क्वेश्चन पैटर्न। आप देखिए, पार्शियल प्रेशर इंक्रीजिंग ऑर्डर और एफिनिटी सबसे ज्यादा किसकी होगी? मायोग्लोबिन की। ऑपोजिट बनेगा। दिस इज द करेक्ट प्रेजेंटेशन या सीक्वेंस। तो मायोग्लोबिन इज वेरी क्रूशियल, और ये खास पिगमेंट किसको मिला है? स्ट्रेटेड मसल। क्यों? क्योंकि स्ट्रेटेड मसल एग्जिबिट, लेट अस डिफाइन द पॉइंट्स जो हमने लास्ट क्लास रिकॉल किया था, कंपेयर किया था। स्ट्रेटेड मसल्स क्या एग्जिबिट करते हैं? फास्ट कॉन्ट्रैक्शन। क्या एग्जिबिट करते हैं? तो दे आर एवरी टाइम इन डेप्थ ऑफ, कर्ज में रहते हैं ऑक्सीजन के। ऑक्सीजन डेप्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? कि जितना ऑक्सीजन उस खुद ब्लड से ले पाया वो पूरा का पूरा इस्तेमाल हो गया, लेकिन अभी भी मसल एक्टिविटी खत्म नहीं हुआ। ये तो एक बिजनेसमैन की तरह है कि उसने ऑर्डर्स ले लिए 10, उसके पास जो फाइनेंस था वो 6 लोगों को डील करने का था, लेकिन 4 लोग ऑर्डर मिल गया। तो बिजनेस में ऑर्डर को कैंसिल थोड़ी करेंगे, क्लाइंट को जाने नहीं दे सकते। आज चले गए फिर कभी लौट के नहीं आएंगे। दिस इज द प्रेशर ऑफ बिजनेस। यस और नो? ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। तो 4 लोगों का भी ऑर्डर ले लिया, लेकिन खुद के पास रॉ मटेरियल खरीदने का इतना पैसा नहीं है। तो वैसे ही मसल बहुत हैवी काम में इन्वॉल्व है ना। एक लड़के को जोश चढ़ा है कि आज तो बिल्कुल डोले शोले निकाल के ही मानूंगा, ऐसे ऐसे लगे हुए लगातार। बट द मसल्स आर नाउ सरेंडिंग, मतलब उनके पास अब ऑक्सीजन नहीं है, डिप्राइव ऑफ ऑक्सीजन, बट यू डजंट सरेंडर, कर रहे हैं काम, स्टेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। तो उस समय उस एक्स्ट्रा मस्कुलर एक्टिविटी के लिए द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो कि वो उसको मिलता नहीं है, लेकिन वो एनारोबिक रेस्पिरेशन से अवेलेबल एटीपी करता रहता है, क्योंकि काम नहीं रोकना चाहिए। जैसे बिजनेसमैन क्या कहता है? क्रेडिट पे पैसा। सबको आ रही मेरी बात समझ में? कि 10 के 10 क्लाइंट, बाकी फिर लौटा देंगे कर्ज। अरे यस और नो? 6 लोगों को तो डील कर दिया, 4 लोगों का जो एक्स्ट्रा ऑर्डर लिया उसके लिए उसने दूसरे से पैसा उठाया कि भाई मुझे माल खरीदना है, जब मुझे अपना ऑर्डर प्लेसमेंट के बाद पेमेंट होगा मैं आपका पैसा आपके कर्ज के साथ लौटा दूंगा, जो भी उसका इंटरेस्ट होगा। तो ऑक्सीजन डेप्थ की डेफिनेशन अभी मतलब आधे लोगों को तो याद समझ भी नहीं आता कि हुआ क्या। व्हाट इज दैट? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन डेप्थ इज ऑपोजिट। इट इज द एक्स्ट्रा ऑक्सीजन, इट इज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, है ना, कंज्यूम्ड बाय मसल। तो मसल प्रॉपर्टीज में हम ये सब साबित करेंगे। इसलिए मैंने कहा कि मायोग्लोबिन को आपको अच्छे से समझना है कि मायोग्लोबिन हेल्प्स टू ओवरकम दैट कंडीशन। क्यों? क्योंकि उसने रिजर्व में रख लेता है कि अगर ऑक्सीजन थोड़ा खत्म भी हो गया सप्लाई, तो तुरंत ये जो छीन के रखता है उस ऑक्सीजन को रिलीज, जिससे कि रेड मसल फटीग स्लोली एंड व्हाइट मसल फटीग क्विकली। फटीग तो दोनों ही करते हैं, लेकिन दोनों में अंतर क्या आता है? एक स्लोली करेगा, दूसरा क्विकली। तो कंटिन्यूस 2-2.5 घंटे क्लास लेने हैं, तो कमर के मसल्स, थाई मसल्स, गर्दन के यहाँ के मसल्स मेरे बॉडी में पिछले 10-12 साल में कैसे डेवलप हुए? रेड मसल्स। कैसे? अरे आ रहा है समझ में? ठीक है। बट हाथ के रिस्ट और यहाँ के मसल्स कैसे डेवलप हुए? क्योंकि फाइन प्रिसीशन के साथ एक्टिविटी करना कुछ ही समय, लेकिन है ना फास्ट कॉन्ट्रैक्शन, यहाँ कैसे मसल्स होंगे? अरे कुछ आया समझ में?
तो साबित करेंगे ना इसके लिए पहले बेसिक साइटोलॉजी क्लियर रहनी चाहिए कि एक टिपिकल मसल फाइबर एज अ मसल सेल इट हैज गॉट दीज कंपोनेंट्स। अब किसी में कुछ ज्यादा कुछ कम होगा रेड और मसल में। फॉर एग्जाम्पल अगर रेड मसल के पास मायोग्लोबिन है जो कि व्हाइट के पास नहीं है, तो ऐसा अक्सर स्टूडेंट्स को एक तरफा याद करने की आदत रहती है साइकोलॉजिकली, यस और नो, ट्रेडिशनली। लेकिन कभी कभी होता है ना कि दूसरे के बारे में पूछ लिया कि व्हाइट मसल की ऐसी क्या प्रॉपर्टी है जो रेड मसल, क्योंकि बहुत कुछ है जो रेड मसल के पास है लेकिन व्हाइट मसल के पास एब्सेंट, लेस प्रेजेंट, फलाना ढिमका। अरे यस और नो, लेकिन एक ऐसा फीचर है जो व्हाइट मसल के पास ज्यादा डेवलप है और रेड मसल के पास है लेकिन लेस रिड्यूस्ड, वो है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एनसीईआरटी में यही तो लिखा है, सारी कहानी का एक निचोड़। साइटोप्लाज्मिक यानी साइटोलॉजी ऑफ द मसल फाइबर रिवील्स दैट रेड एंड व्हाइट मसल या व्हाइट मसल डिफर फ्रॉम रेड मसल, डिफर फ्रॉम नहीं, व्हाइट मसल डिफर फ्रॉम रेड मसल इन हैविंग। स्टूडेंट्स तो साइकोलॉजी के लिए रेड मसल में ऐसा होता है उसके पास नहीं होता, क्वेश्चन उसी एंगल में करते हैं, गलत करके आते हैं। जिस ऑप्शन में लिखा रहेगा कि व्हाइट मसल के पास ऐसा क्या है जिससे वो रेड मसल से डिफर करता है, आंसर है ना, हाईली डेवलप्ड सार्कोप्लाज्मिक, जो यहां तो मैंने दिखाया ही है, और ज्यादा घना, बिल्कुल पतले पतले पतले, बहुत ही ज्यादा घना होता है। इसमें भी, इसके पास भी है रेड के पास, लेकिन दूर दूर थोड़ा थोड़ा। क्यों? क्योंकि जब कभी भी व्हाइट मसल से काम लिया जाता है फास्ट कॉन्ट्रैक्शन। कैसा कॉन्ट्रैक्शन? एक बॉक्सर है, बॉक्सिंग करे जा रहे हैं, स्टेमिना के लिए उसको थाई और यहां तो चाहिए रेड मसल्स, क्योंकि राउंड्स के राउंड्स और बाउट्स के बाउट्स खेलते जाने हैं। 12 राउंड का मैच था, खेलते खेलते 15वें राउंड पे चला गया, दे पे मुक्के, एक पे दूसरे मुक्के ही मारे जा रहे हैं, कोई फॉल डाउन ही नहीं हो रहा, नॉक डाउन नहीं हो रहा कोई, यस और नो, राइट? स्टेमिना है, दोनों लड़ रहे हैं लगातार, तो थैंक्स टू देयर बॉडी विद देयर रेड मसल्स दोनों के। लेकिन फाइनली मैच तो एक पंच जिताएगा, अरे यस और नो। और इतने खाने के बाद बेहोशी के बीच में दे आर प्रोफेशनल, स्टिल हैविंग देयर व्हाट विजन एबिलिटी, उसमें उस मौके की तलाश रहते हैं कि इतनी पूरी ताकत एक जगह इकट्ठा करेंगे और मौका मिलते से एक फ्लिकरिंग एक्शन से एक ऐसी जगह मारेंगे कि सामने वाला गिर जाए। अरे यस और नो। तो वो इंस्टेंट कॉन्ट्रैक्शन, फास्ट है ना, तेजी के साथ पावरफुल स्ट्रोक कौन लाता है? व्हाइट मसल्स। एंड ओनली ड्यू टू व्हाट फीचर? प्रेजेंस ऑफ हाईली कंसंट्रेटेड डेवलप्ड, क्योंकि उसके अंदर क्या मौजूद है? स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम। तो मसल्स को तेजी से एक्टिव करके कॉन्ट्रैक्ट अल्टीमेटली कौन सा आयन कराता है? कैल्शियम। तो जिसके शरीर में जितना तेजी से कैल्शियम रिलीज होगा, नाउ दैट्स द वेरिएशन इन द बॉडी। सबकी अपनी अपनी जेनेटिक्स है, किसी में कैल्शियम लेवल कम मार रहे और एक देता है सब गिर गया, ऐसे एज सेम ही है। आ रहा है समझ में? एक एक चीज का अपना अपना सिग्निफिकेंट रोल है, मतलब। लेकिन थ्योरेटिकली, प्रैक्टिकली तो सब रोल प्ले कर रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन जब बनता है तो थ्योरेटिकली द कंप्लीट स्टेमिना इज ऑन कॉलिकुलर कॉलम ऑन। अभी तो मैंने कैल्शियम का भी रोल बताया कि वो भी जिम्मेदार है, लेकिन क्वेश्चन जब बनेंगे तब उसके अकॉर्डिंगली एक आंसर होता है। किसी को कोई डाउट? बिल्कुल क्लियर, ये अच्छे से समझ में आ गया? बिल्कुल, आज ये याद हो गया अच्छे से, क्योंकि आज का हेडिंग क्या था? अल्ट्रा स्ट्रक्चर तक। पास मी अ बुक। पेज नंबर 304। प्रीवियस 2 क्लासेस में हमने लोकोमोशन, मूवमेंट, ये पूरा कवर कर लिया था, राइट? सबने ये पढ़ के देखा, स्केलेटल मसल, विसरल एंड कार्डियक। तो उस 20 पॉइंट्स को लिखवा के मैंने आपके सामने इस पैराग्राफ को जस्टिफाई किया, मोर और लेस। अगर किसी को कोई डाउट हो आके पर्सनली पूछ सकते हैं, ठीक है? बट देयर आफ्टर टुडे आई हैव स्टार्टेड फ्रॉम हियर, लेट अस एग्जामिन। मैंने कहा ना पूरे बॉडी में 3 तरह के मसल्स एंड सो ऑन है, लेकिन लेट अस एक्सपीरियंस द मॉर्फोलॉजी ऑफ अ मसल बंडल रिप्रेजेंटिंग आवर organ made up of tissues made up of cells, and those cells are characterized by striations. Those striations are by presence of those structural units inside the, मतलब अब रट रहे हैं,
इतने देर से तो इतना कुछ पढ़ाया, सब बताया, लेकिन अब दिमाग में कैस्केड वन आफ्टर द अदर कैसे चीजें याद रहनी चाहिए. Those are myofibril. What are myofibril? Each cylindrical structures elongated along the length of a muscle fiber inside sarcoplasm itself is a bunch of myofilaments. यही तो लिखा हुआ है पूरा. और एनसीईआरटी में इतना बनाया तो मुझे भी इतना बनाने का हक है. अरे कुछ आ रहा है समझ में? ये डायग्राम अब आप टैली करो ना इसके साथ. एवरीवन क्लियर? और साथ में बस इसमें मैंने उलझाया नहीं, बस ब्लड वेसल्स भी साथ में चलते हैं. वो तो यहां से पेनिट्रेट करके अलोंग दी सेल लेवल तक चलेंगे, कैपिलरीज, आर्टरीज एंड वेन्स. क्लियर? तो फाइनली ये पूरा पैराग्राफ मैंने यहां से समझाया है, बंडल, फेसिकल्स. ये वाला पैराग्राफ आप पढ़ के देखें और इस डायग्राम के साथ कोरिलेट करें. एंड फाइनली यहां तक फिर हमने पूरा कवर किया. क्या होता है एच जोन, क्या होता है ए बैंड. लेकिन नेक्स्ट क्लास में एक्टिन मायोसिन मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पढ़ाते हुए डिफरेंसेस में इट ऑक्युपाइज दी, है ना, मायोसिन ऑक्युपाइज दी विच एरिया, ए बैंड एरिया, बट एक्टिन ऑक्युपाइज बोथ आई जोन एंड या आई बैंड एंड ए बैंड. यस और नो? तो क्या होता है, मैं थ्योरी बोल रहा हूं. अब मैं मान के चलो ये डायग्राम वायग्राम नहीं बनाते, आप सिर्फ पहली बार से थ्योरी सुन सुन के क्या कब तक याद रख पाते, कौन कहां है नहीं है. अरे सामने डायग्राम बनाया, इससे याद रख लो और उनको रेसिप्रोकेट करना सीखो. लिटरेचर ऐसे ही तैयार. सबको मेरी बात आ रही है समझ में? फाइनली फिर इसके आगे हम बढ़ते हैं कि ये तो इस ऐसा देख रहे हैं, बट व्हाट इज द क्रॉस सेक्शनल व्यू. खुद एक मायोफाइब्रिल कैसे बंच बनता है, वो शेप आता कैसा है, सिलिंड्रिकल. क्योंकि वो जो मायोफिलामेंट्स की जो ग्रुपिंग बंचिंग होती है वो दो शेप में होती है, हेक्सागोनल एंड ट्राइगोन, विद एन अल्टीमेट रेशियो ऑफ 6:1 और 3:1. एक एक्टिन को 3 मायोसिन घेरे हुए हैं और एक मायोसिन को 6. The ultimate ratio is which myosin protein is abundant, just double of actin, myosin. लेकिन उससे बनने वाले फिलामेंट्स, एक्टिन फिलामेंट्स आर मोर इन नंबर, मायोसिन फिलामेंट्स आर लेस इन नंबर. ठीक है, वो सब देख लिया. बट इज अ मसल सेल ओनली कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस? इस डायग्राम में तो सिर्फ मायोफाइब्रिल्स दिखा है. व्हाट अबाउट ऑल दिस? ये ब्लैक, ये क्या है? न्यूक्लियस, जो सिंसिशियम कंडीशन कहा गया है, पढ़ के देखिए. यानी अगले क्लास में, आज मैंने यहां तक कवर किया है, अगले क्लास में ये पूरा कवर हो जाएगा. और इंडीड आज मैंने यहां के जो कुछ डिफरेंसेस है वो भी मेंशन कर दिए, रेड एंड व्हाइट मसल्स. आ रहा है समझ में? अलग अलग तरीके होते हैं. मैं एग्जैक्ट सीक्वेंस इसलिए कभी कोई फॉलो नहीं कर सकता, ऑथर ने अपने हिसाब से लिख दिया, लेकिन इस बात को इसकी कंटिन्यूटी में यहां आना चाहिए था, वो पीछे लिख दिया. मैंने एक्सप्लेनेशन में यहां आगे समझा दिया. आज आप जाके ये पढ़ के तो देखिए, यहां से एक पैराग्राफ आपको आएगा समझ में कि मैंने क्या साइटोलॉजी समझाया है. और रेड और व्हाइट मसल के डिफरेंसेस एक तरह से बता दिया आपको. बाकी बारीकी करेंगे हम लोग आगे चल के. एवरीवन, थैंक यू.